So, it's a sweet Monday evening for everybody. Yeah, right? We post our podcast on Monday. Right. No, smart. So for everybody, it's a Monday evening, 7 p.m. Everybody who's watching it right at 7 p.m. Thank you. Thank you. We are grateful कि सब लोग देख रहे हैं. Today, छोटा पड़ रहा है ना screen size or size, I don't know. Today we have with us super talented, super strong. What should I say? Super talented, super strong. Strong, सब हाँ. अपने साथ जो भी मतलब आए हैं मतलब the people who are connected with us definitely हम लोग सब साथ में वही सब लोग कर रहे हैं ना जो हम लोग अपने ही लोगों के साथ बैठे हैं फिलहाल. हाँ. Yeah. एक चीज देखा सब लोग मतलब सब मल्टी टैलेंटेड है ना. अभी तक किसी जैसे द फर्स्ट वन वाज हमने टोनी सर के साथ किया था. देन इट वाज कुणाल. देन इट वाज मी एंड डेमिन. देन न्यूजीलैंड. then it was Kamlesh. हाँ. Then after that we did with न्यूजीलैंड. the New Zealand guy. Again it was Kisse. So everybody was into some of the other thing, and it happened so smooth and so effortlessly. You can say. Right. बोलते ना उसमें कुछ ऐसे सोचने का जरूरत नहीं पड़ा. जबरदस्ती नहीं. हम लोग किस तरीके से लेके जाएंगे, पुश करेंगे. लाइक डेज थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं हमारे. ऊपर नीचे हुए रहेंगे, but yeah, everything went well. तो the first thing I don't want to introduce again, Shera कौन है, who is with us. Shera the fighter. Who is Shera? Shera the fighter. I want to ask Shera, who is Shera? Because Shera can himself Justify. legally हाँ. introduce, Justify वही कर. It's not going to be like a formal introduction. Yes, it's going to be facts. Who is Shera? Straight up. Shera is a gangster. Yes, sir. Just not just a normal regular internet gangster. gangster. I'm an actual MMA gangster, bro. Oh Yes, my God! sweet. Yes, he is. Yes, he is. Sweet. Right. And how long have you been practicing MMA? Like MMA and Like, combat sports. कितने टाइम से चल रहा है अपना? Since at the age of 14, I started MMA. Oh, okay. Like probably 7 years now. Uh-huh. I'm doing it. And I just want to do and I want to reach till UFC. That is my सही है. Oh, lovely. main goal. सही है. Yeah. Okay. बढ़िया. UFC is like now the ultimate. Like you don't like. अभी जैसे there's one भी है ना, one championship something. But UFC is the ultimate thing. Yeah. Thanks to Joe Rogan. There is nothing about I know, UFC. I know. Nothing. yet. But boxing and UFC, that is MMA, Yeah. दोनों में still the popularity is inclined towards boxing yet, right? I mean, UFC तो भी Fuck boxers. I'm gonna tell you. I'm gonna be honest. I'll give you honest opinion about boxers. They are just playing around the goof bags, bro. Nothing else. Nothing else. Go boxers like it's a very good sport. Like in India also you'll see our government only supports wrestlers and boxers. My sport which I'm playing right now, MMA, is not government authorized. Right. That's why I'm not able to get so many opportunities. Thanks to Aisha Shroff and Shroff family, because they have created a very good federation, Matrix Fight Night, Oh yes. and that is giving MMA fighters a chance. Nice, yeah. But that like just now recently, a week back, Pooja Tomar, she got introduced to UFC. Right. 2 months back, Anshul Jubli got introduced to UFC. He completed his contender series. Then he went to UFC, but Unfortunately. sad to say he lost. But that's fine. It's fine. It's sport. Somebody's gonna win or It's lose. a Yeah. start. It's a spark. It's for India, it's a right? spark for India. Yeah. Also, don't you think when you started, like when you were like back then 14 years old, right? Yeah. When you started it back then, the whole culture was around the gym and everything. Gym, powerlifting, Yeah. and bodybuilding. The whole culture was that. What was that thought जो तेको मतलब combat sport की तरफ लेके गया? I'll be very honest. I was not into MMA fighting before. At the age of 14 when I started, the only reason I started because I got betrayed by WWE. When I got to know, I wanted to go to WWE, but when I got to know that these all things are scripted, right. yeah, and you have to practice it before you are fighting with someone, then I feel like I was betrayed. Then I switched on MMA because that is actual real fighting. There is no fixing in matches. There might be. Might be We in never some- know. you Yeah, we never never know. You know, But it is actually the WWE thing was actually a very hard. Yeah. Because it was a very big deal for our childhood ना. सबके लिए वो सबके लिए कोई भी बच्चा even if you John are Cena. basic everyone it's Everyone like वही करना है. हाँ.
Everybody like John Cena, Stone Cold, Triple H, Goldberg. I Goldberg don't broke. think so. 9 out of 10 people did not watch it as entertainment. They were like ये सच में हो रहा है. Yeah. और जब लोगों का बबल फटा, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ा, हाँ. बट वो कुछ लोग इतने इंक्लाइंड थे उसके टुवर्ड्स, Yeah. तो उनको लगा कि भाई ये तो चुतिया पे करके. Exactly, bro. Then Abhi, for the last 7 years you've been into MMA. Okay? Yeah. What have you done for this sport? But first things comes out is credibility, because when the last point, Validation. the last time when we sat for the KTM versus RE वाला podcast, Yeah. उसमें we were very much outspoken. और हम लोग ने बिंदास जो हम लोग को बोलना था हम लोग ने बोला. Yeah. People, we don't do it for people, we do it for ourselves. Yeah. Simple. Yeah. But yeah, they should know. People who are sitting here, he had a garage. Yeah. वो चीज कर रहा था. You are in that field. They must know it. Right. For the last 7 years, how has your journey been into MMA? Journey was not at all easy, brother. Initially, like I got introduced to amateur matches. Her father, my sister's father, he introduced me to MMA. Sweet. He took me to a person. He is staying in Mumbai right now. Okay. He told me that you come you come train with me. I said okay, ठीक है चलेगा, मैं आता हूँ आपके पास. तो I used to travel Mumbai up down for at least 4 days a week. तो काफी हेक्टिक था उधर भी ट्रैवल करना, क्योंकि वो टाइम पे आई इधर थिंक से मुंब्रा? हाँ ऐरोली से मुंब्रा? ऐरोली से नहीं, नेरुल से मुंब्रा. नेहरू से तो काफी कल्चर शिप. तो काफ़ी मतलब हेक्टिक होता था स्टार्ट में. बट फिर मेरा डेब्यू मैच आने वाला था. देन या डेब्यू लाइक माय फर्स्ट मैच. like it was a Like how- match था या इट वाज रीजनल बट इट हैपेंड इन नासिक. okay, got it. How long does it take? Like if you started training, whatever it is. If I start training, if anyone starts training, he'll take probably 6 months max. Sweet. That's it. Sweet. 6 months max. And if you if you give all your dedication into your work, then more soon probably. Right, got it. Then I was very dedicated, max dedicated initially. I used to travel by cycle to Mumbai. I used to travel 15 kilometers from Nerul to Mumbai. It's 15. Okay. Then I used to train for 2 to 3 hours. Then I used to come back by cycle. I had a fat bike. Nice. Yeah, and it was shooting on me. That's great. And I modded it also by myself. Then I used to like off road a lot initially. Then like basically my training was very like it was not normal. My training was not only in the gym. My training was climbing mountains. Like we used to races to climb top mountains. You might see the mountain between Airoli and Mumbai. The I used to Rocky come- Balboa training. Yeah, I used to complete a whole mountain in 12 minutes. Oh, वो मुंब्रा वाला. Yeah. अच्छा. तो काफ़ी मतलब देन मैंने एमेचर मैचेस में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ. फिर जब उस टाइम पे आईमा करके था जो इंडिया का एमएमए गवर्निंग बॉडी हैंडल कर रहा था. Okay. वही था आईमा, और उसके प्रेसिडेंट थे डायनेल आइजैक. Okay. एंड उसके असिस्टेंट था एलन फर्नांडिस. देन तो इनिशियली जब मेरा मैच था तब पहला मैच तो जीत गया, ऑब्वियसली आई एम गोना विन, नो डाउट. तो उसके बाद ही सॉ मी. देन उसने देखा कि हाउ आई लाइक पहले आई डिडंट न्यू दैट देयर इज रेसलिंग आल्सो, ग्रैपलिंग आल्सो. स्टार्टिंग में जितना आता है पंचेस, किक्स, दैट्स इट. बट देन धीरे धीरे आई गॉट टू नो दैट दिस इज नॉट माय बेस स्पोर्ट एक्चुअली. लाइक द वे आई एम बिल्ट, आई एम मेड फॉर रेसलिंग. I have tremendous core strength. Tremendous. Like my life's first squat was 100 kgs. Okay. 100 kgs, 5 reps. Okay. Life's first squat. Okay. Then 20 किलो के बार पे किया था. Okay. then it was everything was going great. Then I played many amateur matches. I played 12 amateur matches. Then I got introduced to this one of our sirs. His name is Yaqub Noor Khan. Yeah. Sweet name. No, he also stays in Mumbai. Okay. But then he tried to grab me from my coach. Okay. Then that was a major issue.
but then me like I spoke to him about like I cannot do that because he's your make sir, right? yeah he's my sir. Obviously I cannot betray him. But then after that world championship comes Okay. in किधर हुई? इंडिया में थी? नहीं तो? अजरबैजान रशिया अरे Oh fuck. my God. And when was it? Like कितने साल पहले? आज से नहीं कितने साल पहले? आज से करीब 3 3 साल पहले. तीन. So it 2020. was- नहीं no 4 exact 4 So it was 3 years of your career into MMA and then you went for world championship. Yeah, तो तुमने 3 साल में world championship के लिए ये किया था. yeah. And what was it like? It was some age category or No bro, it's never age category. It's Weight. only based upon your weight. That time I was 105 kilos. Okay. My opponent was 120. My God. And I was 6 feet, exact 6 feet at that time, and he was 6'5". Fuck. And it was a K1 pro fight. And that time I was just 18. Like I almost touched 18 and he was 36 years old. My Man, God. chod. क्या experience लेके आया था मतलब? Double. ऐसे मतलब जब सामने देखा तो फटी नहीं उसको. नहीं हाँ मतलब I'll tell you. Intimidating लगता है. बस मैं फटने ऐसा वाला देख रहा लगता था लाइक हम लोग का पहले ही ओपोनेंट्स डिसाइड नहीं होता है वहाँ पे जाके वेट कैटेगरीज जब मैच होते हैं तब तुमको जाके देखना पड़ता है कि ये है हाँ इससे कैटेगरी मैच हो रहा है कि तुम लोग ये कर सकते हो. मैं देख रहा हूँ वहाँ पे एक बंदा वो था ईरान का. वो बंदा फुल फॉर्म में बैठा है वहाँ पे जैकेट वगैरह पहन के एकदम स्ट्रेट फेस आजू बाजू देख रहा है. मैंने बोला भाई यही सबसे बड़ा बंदा दिख रहा है क्यों ना मैं इसी को ही चैलेंज कर दूं. तो मेरे टीम ने मेरे को काफ़ी डिमोटिवेट किया था. मेरी टीम मेरे को बोल रही थी तू छोटा है तू मत कर वो तेरे को मारेगा. मैंने बोला कि काफ़ी डिमोटिवेट कर रही है मेरे को मेरी टीम तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी टीम की नहीं सुनूं. तो मैं गया उसकी टीम के पास और मैंने उसको ओपन चैलेंज कर दिया कि फाइट विथ मी. तो ही सेड ओके even I'm not getting any my size of opponents, I'll fight with you. You're approx of my size. Okay, okay. तो मैंने बोला ठीक है. 6'5" ना? वो 6'5" था. वो 6'5" था और मैं तो 6 था उस टाइम पे. Okay. या देन हम लोग की टीम्स में डिसाइड हुए. नेक्स्ट डे हम लोग का मैच था. पूरी रात टीम वो डिमोटिवेट कर रही है. लगा दिया उसके वो ईरान का सुपर मॉडल है. वो काफ़ी चैंपियनशिप्स जीता है. और तेरा तो जस्ट बिगिनिंग है प्रोफेशनल करियर का तो तू ऐसा ये सब क्यों कर रहा है. मैंने बोला जस्ट फक इट आई जस्ट वांट टू फाइट हिम. तो वो मेरे दिमाग में पहले से ही था कि कोई भी मेरे को मेरे देयर वाज अ मोमेंट कि मेरे सर ने भी मेरे को पुल बैक किया था कि मत कर क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव है. अगर तेरे को Might hurt you. हाँ तू इंजर्ड हो गया तो हम लोग पे काफ़ी बड़ा बर्डन आ जाएगा. मैंने बोला सर भरोसा करके देखो मैं चोद के आऊँगा. तो फिर नेक्स्ट डे आता है हम लोग फुल रेडी वगैरह हो रहे हैं. तो मेरा एक प्रॉपर M&M के सॉन्ग पे एंट्रेंस था इंडियन फ्लैग के साथ. Sweet. वो उसकी तो एंट्री पहले ही हो गई थी. मेरा सेकंड एंट्री था फुल इंडियन फ्लैग के साथ. रशियन सॉन्ग भी किया नहीं उसका क्या ईरान. वो तो ईरान का था. था. ईरानी था. हाँ. अपने लोग के गाने पे. हाँ हम जब मेरे सामने चाय बन मस्त. एक ये थी प्रॉपर चेयर लीडर्स होते हैं वैसे पूरे इंडिया का फ्लैग का बोर्ड लेके चल रही है. मतलब फक मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है. माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए ये टाइम पे थोड़ा मेन सीन्स है. हाँ तो फिर गए हम लोग अंदर. तो स्टार्ट में ना मैंने बोला कि थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ पहले समझ लेता हूँ ये खेलता कैसा है. दे दिया उसने मेरे 1-2 पंच मुंह पे और 1-2 पंच में मेरा सर घूम गया. मेरा दिमाग खराब. तो मैक्स लेवल एंग्री हो गया मैं उस टाइम पे. बहुत मैक्स लेवल पिस ऑफ हो गया था. मैंने बोला अभी गया ये अभी ये गया ब्रो. तो मैंने उसके पूरे रिंग में भगा के मारा है उसको. इतना मारा है ना ब्रो मैंने उसको नेक्स्ट लेवल मारा है. मेरे सर मेरी टीम शॉक हो रही है उधर दूर से देख के बोल रहे हैं कि ये क्या कर दिया तूने शेरा क्या चोट क्या है तू उसकी. और वो मतलब वो ऐसा किक्स वगैरह यूज कर रहा है. और उस टाइम में मेरा किक बेस इतना नहीं था अच्छा. मतलब मैं प्रॉपर बॉक्सिंग करता था उस टाइम पे. और हम लोग का मैच भी MMA नहीं था. इट वाज K1 प्रो फाइट किक बॉक्सिंग. या एंड ही वाज यूजिंग किक्स एंड ऑल. और वो इतना लंबा है कि मेरे किक्स उस पे लाइक उसके फेस तक तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली. तो मैं उसको धीरे थाई किक्स दिया और 1-2 पंच ऐसे दे दिए हो गया वो नॉक. और मेरी टीम आ रही है मेरे को उठा रही है पूरे स्टेज पे. लाइक काफ़ी मतलब वो काफ़ी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि
मैंने लाइक एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, तो मेरे को जैसे WWE में बेल्ट नहीं मिलते वैसा बेल्ट मिल गया भाई, खुश हो गया भाई, मेरा ड्रीम था Fuck, right, right, WWE right, में जाने right. का, एक ऐसा बेल्ट Right. लेके वर्ल्ड चैंपियन कहलाने का, Right. हो गया भाई मेरा ड्रीम Sweet. पूरा। इतना लाइक मैंने काफी स्ट्रगल किया ब्रो, बहुत स्ट्रगल किया था मैंने इनिशियल, बहुत स्ट्रगल किया था उधर तक पहुंचने के लिए, और फाइनली मैंने अचीव कर लिया जो मेरे को चाहिए था। तो अच्छा था काफ़ी। फिर मैं और मेरा एक पार्टनर भी था, बट उसका एमेच्योर था, वो भी गोल्ड जीता। Ah, फिर nice. आके फुल पार्टी, मेरी वर्जिनिटी खोया हो भाई, Oh, wow. फुल पार्टी ब्रो, फुल पार्टी, ओके क्रेजी था। उसके बाद कैटस्किल्स में स्टार्ट हुआ। नहीं कैट्सकिल एमएमए स्टार्टेड लास्ट ईयर। ओके You are 18 ना, मतलब 18 bro is like fuck, like right. में 37 को हाँ, fuck, sweet. डबल को Man, 6'5" भी ऊपर से। fuck. 18 is like nothing, dude. Is it that you have to be built different or you have to be mentally something different if you want to get into this fight thing? Bro, it's natural. You're born with it, you know. See, people when they come and ask me about it, like I train people Yeah. and there are a lot of curious questions. Right. They come up with questions like मेरे को भी ना MMA करने का है. Like MMA is been a is It's becoming a rage now. Yeah, it is. Like cloud अभी उसकी तरफ जा रहा है. पूरा People are cloud. inclined towards. Like जैसे अभी starting में body building था. अब बॉडी बिल्डिंग को लोग उतना देख नहीं रहे हैं जितना अब शायद पावर लिफ्टिंग को देख रहे हैं, बिकॉज उसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. अभी इधर से ही जा रहा है वो क्रेज यूएफसी की तरफ. Yeah. बॉक्सिंग हैज बीन देयर फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम. Yeah, लंबा टाइम रहा है. yes, तो चलो ठीक है. exactly. But it's not that flashy ना. Boxing का भी flashy नहीं था कभी भी. Coming to the flashy terms, we'll definitely come to that part. Flashy को लेकर ना मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उस चीज को लेकर. और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मेरे को फ्लैशी टर्म को लेकर. Is it good now? बंद हो गया. Fine, fair, cool. Sort. Okay, cool then. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है लाइक आई हैव अ स्टूडेंट आई एम ट्रेनिंग. आई मीन नॉट जस्ट अ स्टूडेंट नाउ, he's like just like a brother now. His name is Shubham and he wants to start power lift. He's a power lifter. Yeah. 4 महीने में अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप कर दी. 4-5 महीने में 150 किलो के डेडलिफ्ट, Yeah. 120 किलो पे 3 रेप स्क्वाट्स के ले रहा है बंदा बिंदास. 60-65 kg की बेंच मार रहा है 60 kg बॉडी वेट पे. इज लाइक मेरे को ना सर, मेरे को इसमें एक बार गोल्ड करके ना मेरे को MMA करना है. द मेन क्वेश्चन दैट स्टैंड्स हियर इज, मैं कर पाऊंगा क्या MMA? कभी पावर लिफ्टिंग में उसे एक क्वेश्चन नहीं आया. लाइक नाउ दिस क्यूरियस क्वेश्चन कैन बी इन एवरी पर्सन्स माइंड हु वांट्स टू स्टार्ट MMA. तो क्या हर एक इंसान कर सकता है क्या? I'll tell you. Basically, अगर किसी इंसान को MMA चालू करना है ना, तो उसको अपना पहले तो बैकग्राउंड नहीं चेक करना है कि उसका लाइक बैकग्राउंड कैसा है. लाइक उसके फैमिली को एक्सक्लूड करके उसको सेल्फ और खुद के, अगर उसको खुद के बॉडी से प्यार हो ना, अगर ऐसे इंसान को जिसको अपने बॉडी से प्यार हो, वो MMA नहीं कर सकता ब्रो. कभी नहीं. जिसको अपने चेहरे से प्यार हो, Right. क्योंकि वो कभी भी फूटता है. Right. कभी भी. मुझे ही पता है मेरे बॉडी में कितनी इंजरीज है. लाइक बैक, लाइक 2 years बैक जब मेरा फाइट था दिल्ली में, तो मेरा मैक्स मेजर इंजरी हुआ था. मेरे मॉम डैड को नहीं पता ये बात. मेरे लेफ्ट के 3 रिब केज टूट गए थे, 3 रिब्स टूटे थे. ये शोल्डर मेरा डिसलोकेटेड है. नहीं पता मेरे मॉम डैड को, नहीं बता सकता मैं, क्या मुंह लेके बताओ. एक तो इतने मन्नतों के बाद में लाइक मेरा बर्थ हुआ है, हाँ. और उसमें भी सिंगल चाइल्ड हूँ, उसमें भी ऐसे फील्ड में हूँ कि हर जगह, हाँ बहुत काफ़ी मतलब देखा है, स्ट्रगल तो देखा है मैंने. सब ऐसा स्पून फीडिंग तो नहीं हुआ है, बट हाँ वही इंसान कर सकता है MMA जिसको जो किसी से नहीं डरता ब्रो. किसी से नहीं डरता. मतलब अभी भले ही वो एकदम कम वेट कैटेगरी का भी क्यों ना हो, उसके सामने अगर मैं भी आ जाऊँ या मेरे से भी कोई बड़ा आ जाए, तो ही शुडंट बी अफ्रेड. Is rage important? Yes, at some point, yes. Is rage important to win? No, I don't think so. I think like, वो you ये will- है वो दोनों तरफ it's नहीं 50-50 वो I guess. पूरे मतलब पूरी तरीके से नहीं. हाँ, right. If you are having an angry mind, अगर if you are full of rage, then actually you cannot win a fight. Exactly. Thoughts cloud हो जाते हैं. हाँ, क्योंकि वो टाइम पे ना समझता नहीं आदमी को, जब हम ऑक्टागन में रहते हैं, रिंग में होता है, हाँ. जब MMA इज बेसिकली ना कि तुमको मार खाना सिखाते हैं, मारना हाँ, नहीं right, सिखाते ब्रो. right. मारना तो बहुत बात की बात है. तुम्हारी Right. बॉडी की कंडीशनिंग, तुम्हारी बॉडी कितना सह सकता है, कि तुम कितना मार खा सकते हो.
लोगों को वो आदत नहीं रहती है. एंड सिमिलरली लाइक बॉक्सिंग में यू आर टॉट डिफेंसिवनेस कि तुम डिफेंसिव कितना हो सकते हो, यस. है ना. तो इन लाइक अगर स्टार्ट में अगर तुम रिंग में उतर ऑक्टागन में उतर रहे हो, वो तुमको 2-3 पंचेस मार रहा है, हाँ. तो मोस्ट ऑफ द फाइटर्स के साथ क्या होता है, इफ दे आर नॉट मेंटली वेल, तो उनको गुस्सा आ जाता है. हाँ. एंड ड्यू टू रेज हाँ, stupid उनके पंचेस बहुत आड़े टेढ़े निकलते हैं. दे मतलब उनका जो फाइटिंग स्टाइल जो वो माइंडसेट बना के आए थे ना इनिशियली रिंग में अंदर आने से पहले, right. वो माइंडसेट पूरा कोलैप्स हो जाता है. ऑब्वियसली. वो माइंडसेट कंटिन्यू रख के फिर वो आदमी नहीं खेलता है. अगर 2-3 प्रॉपर पंच उसको लगे, उसको फिर गुस्सा आ गया, नो, तो उसके आड़े टेढ़े पंच निकलेंगे. सामने वाले अपोनेंट उतना ही शाना रहता है, उसको समझता है कि ये पागल हो गया है. हाँ. और वो फिर फायदा प्रॉपर उठाता है. टेक्निकली जाता Exactly. है. प्रॉपर उसको पता है कि अब ये गुस्से में है, ये अभी कैसे पंचेस मारेगा, वो थोड़ा स्टडी करता है उसको. लाइक 30 सेकंड भी एक आदमी इनफ होता है एक ओपोनेंट को स्टडी करने के लिए. तो अगर वो देख रहा है कि उसके पंचेस टेढ़े निकल रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ कर देगा जिसको नॉक नहीं तो सबमिट हो जाएगा. वेरी सिंपल. और इसके वजह से द गाय हु लूजेस also loses self confidence in Exactly. him. And then he leaves MMA. Exactly. Anger is not the Anger is anger तो never चाहिए like- नहीं bro. Like there are enough cases. No, but there हाँ. at some point anger is also necessary. But you should know how to channel it, na? Yeah, There are exactly. enough cases you'll see videos on YouTube where अभी कैसा it's a different thing. You are sparring in a gym और workout करना and competing in a competition is a whole different thing. तुम्हारा adrenaline rush अलग है. तुम फटका खाओगे, sparring का फटका अलग है और वो स्टेज का फटका अलग स्टेज का फटका अलग है. है हाँ. ना. आप फटका खा रहे हो, देयर आर वो इनफ राइट बिटवीन द राउंड्स, द कोच इज लाइक काम डाउन, काम द फक डाउन. तुम आड़ा टेढ़ा मारोगे वो तुमको कैलकुलेट कर लिया ना, खत्म. देयर आर इनफ. अपन ने बहुत सारे वो टिपिकल मूवीज में भी दिखाते ना, सामने वाला अभी फाइटर पागल हो रहा है, अरे अभी ये गुस्सा आ रहा है, इसको मैं थकाता हूँ और फिर मैं मारता हूँ. व्हिच इट्स एक्चुअली इज ट्रू. It is actually true, yeah. तो ये बॉक्सिंग के केसेस में फॉर एग्जांपल एंथनी जोशुआ और एंडी रुइस का Andy फाइट Ruiz का fight था, अभी हाँ. एंथनी जोशुआ को तो देखा ना, ही इज लाइक अ wooden box built Yeah, up, proper he's brick proper muscles built. and everything. Yeah. And Andy Ruiz is fat Yeah. as fuck, South American guy, Latino, मोटा है भाई. इसने उसको गिरा दिया 2-3 बार. एंथनी जोशुआ का एक पंच इज डेंजरस इनफ. Yeah. एंडी रुइज 2 बार गिर गया, कैसे 1-2 बार नॉकडाउन हुआ. थर्ड टाइम उठा भाई इसने, बिकॉज ही न्यू ही इज लूजिंग हिज थिंग. वो थोड़ा ओवर पावर हो रहा है मेंटली, इसने दे दिया उसको भाई. आई गेस दैट वाज द फर्स्ट फाइट एंथनी जोशुआ लॉस्ट. Yeah. इट वॉज अनबिलीवेबल. द वर्ल्ड लॉस्ट इट कि बहन चोद ये मोटा कैसे इसको गिरा सकता है. सो देयर आर इनफ इंस्टेंसेस वेयर द रेज और द एंगर डजंट मेक एनी सेंस. Exactly. Or also how big you are, or it doesn't matter. I'll tell you one simple thing. In fight game, your body structure doesn't matter. Right, true. Yeah, if you are a fighter, हाँ. you can fight in any shape. Bro. Yes, true, Any. true. You can fight in any shape. You will kill that guy. No matter if you're like. I know, bro. Even I was I was actually like. I was tall at that time, but I was very a thin. bit slim. हाँ. But सामने वाला was very muscular, bro. हाँ, right. तो मेरी तो कान फट जानी चाहिए उसको देख के. सवाल. बट नहीं, वो तुम्हारा What, जिसका how you माइंडसेट build. स्ट्रांग है ना, Exactly. Exactly. वो तो सामने वाले So को it's कैसे about भी the मार courage, देगा. right? Yeah, मतलब तुम्हारे अंदर वो हिम्मत रहनी चाहिए सामने वाले को फेस करने के लिए. Also if you want to start MMA, anybody wants to start MMA, तो I got this point with this conversation कि तुम्हारे अंदर वो गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए. That trait follows you from the beginning of your time कि तुमने पहले 4 चीजें की है और वो 4 चीज करने का तुम अगर डिस्करेज हो गए थोड़ा सा और तुमने छोड़ दिया वो चीज, तो इट इज नॉट फॉर यू. इट इज नॉट अनदर जिम वाला थिंग कि तुम लोग अभी पावर लिफ्टिंग का रेस चल रहा है, तुम पावर लिफ्टिंग कर रहे हो. इट विल जस्ट ऐड अनदर स्किल एंड यू विल बी लाइक ठीक है ये मैं पावर लिफ्टिंग का रेगुलरली. बट फाइटिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स इज लाइक यू कुड रियली यूज इट इन रियल लाइफ. Yeah, एंड यू नो कि वो रेज जो तुम जैसे पर्सनली मेरे को भी लगता था ना कि आना चाहिए भाई, बिकॉज आई ग्रू अप वॉचिंग ब्रूस ली, जैकी चैन मूवीज. माई डैड यूज्ड टू डू किक बॉक्सिंग एंड एवरीथिंग. तो मैं उस रेंज में था ही. एंड नाउ देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन द बैग कि जिम में, तो मेरे को लगा ना ठंडा हो जाता है. एज वी वर टॉकिंग कि एज यू लर्न थिंग्स, एज यू गेट अप ऑन द टेक्निकल वॉट एवर एस्पेक्ट्स, यू आर लाइक यू गेट कामर कि भाई वी कुड एक्चुअली हर्ट समवन. यू नो लाइक आई एम आस्किंग यू बेसिकली कि ये डज दिस हैपन ऑन अ रेगुलर. सब फाइटर्स लोग के साथ होता है लाइक एज यू नो कि अपन ग्रो कर रहे हैं कि भाई अपना स्किल्स बहुत अच्छा हो गया, मेरे को मालूम है इसको तोड़ सकता हूँ मैं सामने वाले को. बी अ रेगुलर लेमैन या किसको मतलब in इन पब्लिक अगर अपन ऐसा हो जाते हैं क्या, मतलब कि शांत हो जाते हैं क्या मेंटली, ऐसा इज इट अ थिंग? Like yeah, basically I'll tell you about myself only. Like since like when I used to stay here in Airoli,
I was a mad boy. हाँ I was a very mad boy. Very aggressive. कोई भी अगर मेरे को किसी गाली भी दे दिया राइट तो फिर मैं मारामारी गया, हाँ डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट छूट मारो. और मेरे को नहीं फर्क पड़ता था कि कोई कितने, मैं पहले से ही ऐसा हूँ, हाँ तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता था कि कोई कितने, तू अकेला, नहीं तो तू 10 जन को ला, नहीं एक तो को तू तो 20 मारेंगे. जन को ला. हाँ. मेरा माइंडसेट ही पहले से ऐसा था कि मैं सबको मार के जाऊंगा. मैं मार खाऊंगा, Right, इट्स हाँ, ओके, obviously, वो फर्क simple. नहीं पड़ता, मेरे But को मेरे को चलेगा. मारना है. तुम लोग मेरे को कितना भी मारो, इन रिटर्न तुम लोग डबल मार खाओगे. हाँ हाँ ये तो मेरे से पहले से ही माइंडसेट राइट था. राइट सिंस आई गॉट इनटू MMA, मैंने रियलाइज किया कि जो चीज़ के मेरे को पैसे मिलते हैं वो चीज़ मैं क्यों करूँगा बाहर, एग्जैक्टली लाइक फॉर फ्री. राइट और मेरे को मेरा ऐसा टैलेंट स्ट्रीट फाइट्स में तो वेस्ट नहीं करना, एग्जैक्टली बट इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल. क्योंकि अगर MMA टॉपिक आ रहा है तो तुमको ऑब्वियसली तुम्हारा सेल्फ डिफेंस कितना अच्छा होगा. अगर बाहर अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इफ समवन इज अटैकिंग यू, तो यू शुड नो हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ. अटैक इज सेकंड प्रायोरिटी. अगर कुछ मेजर चीज हो रही है देन यू हैव टू अटैक, राइट बट इनिशियली आपको Defensive mode में ही रहो. या आई विल टेल यू अबाउट माय सीन. हाँ मैं फिर जैसे मैं MMA में आया, उसके बाद से फिर इतना कुछ ये नहीं था. मतलब मेरा एग्रेशन कम हो गया, मैं बहुत काम हो गया, बहुत ज़्यादा काम हो गया. क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एग्रेशन मेरे ट्रेनिंग में निकलता है. एग्जैक्टली तो फिर मैं बाहर में मेरा ऐसा माइंडसेट हो गया था कि अगर कोई इंसान अगर मेरे से कुछ गलती हो गई या कोई मेरे को गाली भी देना, ओके ब्रो, आई नो बिंदास ब्रो, आई कुड फक तू यू दे, अप. तू नहीं, तू मेरे को मुंह पे 10 गाली दे, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता अभी. until तू अपने हाथ नहीं उठा रहा तब तक. हाँ एग्जैक्टली. मतलब यू आर लाइक कि जान दे भाई, why to indulge in this? हाँ, yeah, Doesn't make any हाँ. sense. The results are already clear. Always I clear, you don't know want the to results, get you into know it. what Yeah, Please, I मैं तेरे को already बख्श रहा हूँ. तू बोल मेरे को जितना बोलना है, तेरी क्या बोलते हैं, ईगो को सेटिस्फाई कर ले. बस. सी द क्वेश्चन हियर वाज, मेरे हिसाब से भी ये क्वेश्चन था हाँ. कि अगर तुम मतलब MMA स्टार्ट करते हो एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यस, डू यू गेट इनटू दिस थिंग कि बहनचोद मेरे से बेटर कोई है ही नहीं, मैं तेरी माँ छू दूंगा. ऐसा है जैसे कि जैसे लिफ्टिंग में ही होता है. जैसे जिम जाने वाले लड़के लोग आजकल मस्त जिम जाते हैं, थोड़ा आर्म्स मसल वसल बना देते हैं और बाहर जाके लड़ने चालू करते हैं, तू क्या है, तेरी तो माँ छू दूंगा मैं. ऐसे वाला होता है फीलिंग? आई विल टेल यू, ये फीलिंग ना बहुत कॉमन है. ये होनी है, ये जनरल थॉट है. या बहुत लाइक ये आता ही है. लाइक अगर 1-2 मैचेस जीत गए मेरे पे, हाँ, I get it. लाइक कि हाँ स्टार्टिंग में इनिशियल फेज, हाँ इनिशियल फेज में ऐसा आता है कि हाँ फक मैं बेस्ट हूँ, मैं किसी को मार चोद दूंगा, बट इट इज नॉट ट्रू. हमेशा अपने से कोई ना कोई बड़ा तो एक शाना रहेगा. You never know यार. You never know, या एग्जैक्टली. बट यू शुड ऑल्सो नो कि उस चीज को पुल बैक कब करना है. मतलब अगर तुम उसी कॉन्फिडेंस में रहोगे ना, तो वो जरूरी भी है, वो माइंडसेट रहना फॉर एक सर्टेन टाइम तक जरूरी भी है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू ट्रेन वेल. राइट बट वो माइंडसेट कॉन्स्टेंट लेके नॉर्मल वर्ल्ड में भी व्हेन यू आर आउट ऑफ द ट्रेनिंग कैंपस, उसके बाद भी अगर तुम ये माइंडसेट लेके चल रहे हो, फुल एटीट्यूड में चल रहे हो, देन इट इज वेरी रॉन्ग. मतलब तुम्हारा पर्सनैलिटी बहुत गलत दिख के आता है लोगों में. तुमको गिनती में बेसिक गुंडागर्दी, बेसिक गुंडागर्दी वाइब. हाँ, तो द सोशल वाइब दैट यू क्रिएट थोड़ी खराब हो जाती है. हाँ, करेक्ट खराब हो जाती है. लाइक ऐसा नहीं, तो मैंने ऐसा इनिशियली जब मैं ऐसा मेरे पीक फेज पे आया तो लोग मेरे से स्टार्टिंग में डरने लग गए. कॉलेज में भी, अभी मैं कॉलेज में भी जाता हूँ, मेरे से बहुत लोग डरते हैं ब्रो. मेरे को पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मैं जाके उसका कॉलर पकड़ूंगा, बोलेगा क्या और डरा दूंगा. नहीं, मैं एकदम सबसे अच्छे, मैं सबके साथ अच्छा हूँ. जो मेरे से अच्छा मैं उसके साथ अच्छा हूँ, एकदम सिंपल. बट ये माइंडसेट रहना भी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम तुमको पुल बैक करना भी आना चाहिए. अभी मैं बताता हूँ, मैं यूजुअली खुद को ऐसे स्ट्रीट फाइट्स में इन्वॉल्व करता नहीं हूँ. मेरे साथ एक बार सीन हुआ था, काफी मेजर सीन था वो. I'll tell you. Okay. तो मैं आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम मुंब्रा रात, और मेरा तभी ट्रेनिंग रात के 10 बजे को स्टार्ट होता था और 11 बजे खत्म होता था, 11 साढ़े 11 को. और वहाँ से फिर जब तक मैं थाने पहुँचता था, थाने स्टेशन, तो लास्ट ट्रेन होती थी पनवेल के लिए. मुझे नेरुल उतरना होता था. लास्ट ट्रेन होती थी 12:30 की. तो और एक ऐसा स्काई वॉक है थाने स्टेशन पे. वहाँ से मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग चल रहे थे और उसने गोल्ड चेन पहना था. मैं आगे चल रहा हूँ,
मेरे कान में ईयरफोन्स है, मेरे को अभी भी याद है, मैं ट्रैविस स्कॉट सुन रहा था, बटरफ्लाई इफेक्ट फुल सुन रहा हूँ, आगे फुल वाइब करते करते जा रहा हूँ। मेरे को समझ नहीं रहा, मैं फ्रेंड का पीछे जोर का चिल्ला था, शेरा मतलब क्या हुआ, तो उसको 5 जनों ने गैंग अप किया था उधर के लोगों ने, और उसके बाद ब्लेड वगैरह का ब्लेड्स वगैरह थे उसके पास। और मैंने बोला ये क्या सीन है, मैंने बोला मेरे को लगा ऐसे रहेंगे कोई दोस्त वगैरह लोग। स्टार्टिंग में मुझे नहीं समझा, मैं तो अपने ही वाइब में मैं जा रहा हूँ कि मतलब क्या हुआ, तो वहां से 5 जनों में से 3 जन मेरे को अटैक करने आए, और उसमें से ये देखो ये वो ब्लेड मेरे को उसने मारा, और तो फिर ऑब्वियसली मेरे को डिफेंसिव होना पड़ा। तो एक जन ने अटैक किया, मैं थोड़ा पीछे हुआ, मैंने बोला अभी हो रहा है गलत सीन, तो और 2 जन आए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उन तीनों को स्काई वॉक से फेंक दिया। बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छा। डायरेक्ट फेंक दिया। वो मरे, वो जिंदा है, आई डोंट नो, आई नेवर नो, मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। मैंने मेरे फ्रेंड का कॉलर ग्रैब किया, मैंने बोला यहाँ से चल, ट्रेन छूट रही है। उसको लिया मैंने, हम लोग ट्रेन में चले गए, पता ही नहीं। और बाकी जो 2 जन थे वो लोग वो देख ही नहीं पाए कि ये क्या हो गया, वो चल गए वहां से, भाग गए लोग सीधे, चले गए ब्रो, वेरी सिंपली चले गए। बहुत अच्छा काम। टूटे तो रहेंगे वो लोग पक्का। हाँ, 1-2 माली का तो रहेगा ही वो स्काई। ये दिस इज वेयर आई वाज गेटिंग ना, कि people, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यू टॉक्ड अबाउट योर कॉलेज लाइफ, नाउ समवन यू मस्ट बी पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम व्हाटएवर, पीपल नो ना कि अरे हाँ ये फाइटर है या ही डज व्हाटएवर, तो पब्लिक के गांड में मस्ती रहता है टू पिन करने का कि भाई इसको ये क्या शाना है क्या, इधर फाइट करना है। गांडू, आई एम जस्ट तोड़ देंगे तेरे को टुकड़े में। The whole point is when you are used to, like, you cannot challenge a chef in a kitchen. Exactly. You cannot challenge a fighter in a fight because he's made from here like that. Like एक होता ना एक चीज, like अब ये है ना, यूजुअली जनरली हमारे दोस्तों के बीच में भी होता था। Like I'll tell you, जब झगड़ा करने वाली बात आती, इतनी बहुत चूत देंगे, चलो कॉलेज के बाहर किसने तेरे को मारा, 5 जन अपने दोस्त लोगों को लेके चले गए हम लोग। अब वहां पे 5 में से 4 की तो गांड फट जाती है। वो एक जन जिसमें थोड़ी हिम्मत भी रहती है, वो 4 को देख के डिस्करेज हो जाता है, क्योंकि सामने 4 लड़के लोग बैठे हैं, उनको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कौन आया क्या नहीं आया, बिकॉज हम लोगों में हिम्मत तो है यहाँ पे बैठ के बात करने की। सामने पर जब सिचुएशन आ जाती है ना, दैट इज व्हेन द रियल करेज वाला थिंग कम्स। राइट। I'll tell you, there was one scene, मेरे को किसी का नाम नहीं लेना यहाँ पे, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उस अकेले का नाम लूंगा मैं, हिज नेम इज कौशिक, ठीक है। तो उसका एक सीन हुआ था, एक फाइट हुआ था SIS कॉलेज के इधर, ठीक है। तो वहाँ पे द प्रॉब्लम वाज, आई गेस कुछ लड़की का प्रॉब्लम था, किसी लड़की के उसने बात किया था, तो इट वाज नॉट हिज पार्ट वाज नथिंग। ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, टॉल 6'2", 6'3", अच्छी खासी बॉडी थी तभी भी, एकदम क्यूट चॉकलेट बॉय दिखता था बॉडी के साथ। अब वहाँ पे एक नेक्स्ट डे पता चला, सारे गाँव वाले लोग को बुलाया उन लोग ने, उसके दूसरे साइड ने उसका जो बॉयफ्रेंड है या फिर उसको जो वो लड़की को पसंद है, क्रश वाला शॉट, यस, तो उसको बुलाया। नाउ इट वाज बैक इन 2012-13 की बात है, लाइक हम 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर में रहे होंगे, मुझे लगता है वो टाइम की बात है, यस 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर की बात है। तो हम लुखे से बच्चे लोग एकदम लगते थे, हम लोग ऐसे कुछ लगते नहीं थे, लाइक जेनेटिकली टोटली अनफॉर्चुनेट पीपल, ऐसे कैटेगरी से हम लोग बिलोंग करने वाले लोग थे। हम लोग को लगता था अब जिम भी जाएंगे तो हड्डियां बढ़ेंगी, मसल कहाँ से आएगा भाई, मसल तो आने नहीं वाला, डिसलोकेट हो जाएगा शायद से, ज्यादा वेट उठा देगा डिसलोकेट, लोग भी तो यही बोलते थे। तो पुशअप्स मार नहीं सकता है, तो पुलअप्स मार सकता है, जिम जाके करेगा क्या तू, ये वाला सीन था हमारे साथ। नाउ देन he called us, a few friends of us, I mean his community वाले जितने फ्रेंड्स थे 4-5 जन, सबको बुला उसने, बोला उधर जाके ना ऐसा सीन हुआ करके, उसने लड़के लोग बुलाया करके मेरे को मारने के लिए, चलो यहाँ से आते हैं। Unaware about the situation, I was the one, there's another friend of mine, हम लोग 2 जन थे, साथ 2-3 ऐसे लड़के लोग भी थे जिनकी अच्छी खासी बॉडी हुआ करती, ठीक है। they were back then, they were like 5'10", 2012 की बात है, हम लोग आज से 12 साल पहले, इट्स लाइक 17-18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में 5'10" का तभी बंदा एकदम लंबा चौड़ा लगेगा। तो हम गए हुए वहाँ पे, और वो बंदा क्या बोलता है पता है, एक बंदा वहाँ पे, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, नॉट अ गुड फ्रेंड, मेरा नाम बिल्कुल नहीं लेना यहाँ पे, अरे लुखे लोग को क्यों बुलाया तूने, बुरा तो लगा, फैक्ट तो था, पर बुरा लगा, बेंचो लुखा क्यों बोल रहा है, और तभी जस्ट जिम जाना स्टार्ट करता, थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, जिम जाना स्टार्ट हो, कोई बोले बेंचो थोड़ा बॉडी बढ़ रही है, लुखे लोगों को क्यों बुलाया करके तूने, उसको ऐसे बोला उसने। तो कौशिक वाज लाइक, अरे अपने दोस्त लोग हैं, अपने को बस वहाँ पे खड़ा रहना करके जाके, ही वाज आल्सो अनअवेयर कि झगड़ा वगड़ा होने वाला है करके। द पॉइंट इज, हम SIS के सामने ना एक थोड़ा छोटा सा चौक टाइप जगह है, हाँ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द एरिया बिकॉज अभी बहुत पुरानी बात हो गई ना, पर चौक टाइप का सेक्शन है, ठीक है। और वहाँ पे ना हम रुके वहाँ पे,
6-7 लोग, दे डिडंट कॉल एनीबॉडी। 7 लाख लड़के लोग आए, कुछ बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, चालू हो गया। गमला उठाया उसने सीधा, नीचे रखा होता है गमले, मतलब गमले रखे हुए वहां पे, मतलब पेड़ पौधे रखे हुए वहां पे, पौधे रखे हुए, उठाया सीधा फेंका उसने। कौशिक को पता नहीं क्या 4 लोगों को कुत्ते की तरह मारा उसने। 4 लड़कों को कुत्ते की तरह मारा उसने कौशिक ने, और 3-4 लड़के लोग आए फिर कौशिक को पकड़ने। कौशिक और उन लोगों में पकड़ा पकड़ी चालू है, उनकी गांड फट रही कौशिक के पीछे। मैं और मेरा दोस्त हम लोग ऐसे खड़े साइड में, हमको लगा ही नहीं हम लोग हैं करके साथ में, हम लोग थोड़ी मार सकते हैं, ये 2 लुक्के लोग क्यों आएंगे। और 2 लड़के लोग थे कौशिक के फ्रेंड, दोनों कुत्ते की तरह मार खा रहे हैं, और कौशिक 4 लोगों को दौड़ा रहा है। मैं खुश हो गया, कौशिक देख बहनचोद, हम लोग दोनों का अलग चल रहे हैं, अरे कौशिक को देख, कौशिक मार रहा है बहनचोद। तब तक वो जो दूसरा बंदा है जो हम लोग को इस तरीके से बोला था, उसको कर्मा मजबूत हिट हुआ भाई। उसको 2 लोगों ने धर दिया। उसको क्या बोला पता है? सोचो उसको क्या बोला, इतने लोगों के सामने, तू मार भैंचो, तेरे गांड में इतना दम है ना, तू मार उन लोगों को, एक को तो कुछ तो कर, तुझे आईची गांड पाया पड़। पैर पड़ा उसने, पैर पड़ा उसने, मेरे सामने पैर पड़ा उसने। वो देखेगा पॉडकास्ट, पता नहीं भाई, तेरा नाम मैंने लिया नहीं है, और नो हेट फॉर यू, इट्स लाइफ, इट हैपेंड दैट वे। और मैंने सामने वो देखा, मेरे लिए तो अच्छा एग्जांपल नहीं बना भाई उस पॉइंट पे। उसके बाद मेरी भी एक बार फाइट, मेरे सबसे 7 स्टिचेस थे भाई, एक सेक्टर 5 में 5 में हुआ था हमारा। बहुत, मैंने तो 4-5 कुत्ते की तरह उनको तो गिरा विरा के, दादा बिदा लोगों को गिरा विरा दिया मैंने बेंचो। सर पे मेरे पीछे से बाल्टी फेंकी उसने, और बाल्टी का कॉर्नर लगा मुझे, बकेट का कॉर्नर, एकदम फाइबर की बकेट होती ना। फिर मैं पत्थर उठा दिया, मेरे दोस्त को 4 जनों ने घेरा हुआ है। मैं तो तब मेरे कौशिक का एग्जांपल बन गया था, बेंचो मारा मारी करना कौशिक जैसा। कौशिक बेंचो पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को कुत्ते की तरह मारा। Like it should not happen that way. देखो गलत था, सामने से पुलिस वाले साइड से भी थोड़े ऑफेंड हो गए थे, उन लोग माँ बहन की गालियां दे रहे थे, इसने भी दे दिया। द पॉइंट इज नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग दैट थिंग। और तब जब तुम अपने साइड से ही बोलते हो कि भैंचो मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं बहुत माचो हूं, तुम पैर पड़ने मत जाओ। वो लिटरली पैर पड़ गया। एग्जैक्टली। इस बंदे ने क्या किया पता है, सीधा शायद उसने वही टाइम, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने सीधा गमला शायद उसके सर पे फोड़ दिया था। फिर कौशिक ने मार खाया, पर कौशिक घंटा रुका नहीं, गांड में दम था। इट इज अब अबाउट पुलिस वाले आ गए, तब तक ये लोग भाग गए। कौशिक ने थोड़ा बहुत मार खाया रहेगा कौशिक नहीं, पर मेरे लिए कौशिक के लिए वो टाइम पे वो रिस्पेक्ट आ गया, पैंचो तू अकेला मार रहा है सब लोग को। नाउ दिस वाज द सीन जो मेरे साथ हुआ था, मतलब मेरे फ्रेंड्स और मेरे गैंग सर्कल में, जैसा ये सेम सिमिलर सिचुएशन है। बट अब जब लोग स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, इनिशिएट करने वाले होते हैं MMA, तो अगर रास्ते में फाइट होगी ना तो मैं कुत्ते की तरह मारूंगा 4 लोगों को। तो इफ यू आर स्टार्टिंग विद दिस इनिशिएटिव, नो ब्रो, तो तुम शायद 2-4 महीने में छोड़ दोगे। नहीं, you are not made for that sport only. I'll tell you one thing. Fighting in a ring and fighting on streets are complete 2 different things. मतलब you can use your moves, but you never know सामने वाला कौन है, क्या उसके पास क्या है, कौन से प्रॉप्स यूज कर रहा है वो। अभी गमला, जैसे कि गमला, नाइफ, ऐसे ये एक चीज, लाइक यू नेवर नो कि सामने वाला, क्योंकि सामने वाले का इंटेंशन रहता है दैट ही विल इंजर यू, He'll hurt you. he will give a cut on your body. Yeah, he will hurt you. Like उसका उतना इंटेंशन रहता है, Lethal hurting. अगर बट जो इंसान जिसके जो ये सब फेस कर रहा होता है ना, उसका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं इस चीजों से बचूं कैसे, ना कि कूल एंड काम उसके ऐसा माइंडसेट रख के मैं उसको हर्ट करूं। नहीं, I heard a fighter say once, fighter is I guess, कि if you are in a, you end up in a fist fight on the street. This was about USA or whatever. yeah, If you end up in a fist fight, run away. The best part is don't indulge in it. yeah, exactly. And this happened. अभी कैसा, ये मेरे भी जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स, मारा मारी तो हो जाती है। अभी मेरे एक अंकल है, इज हॉट ब्लड। हाँ, उनका क्या हुआ, उनका बिजनेस में किसी ने उनका बिजनेस का थोड़ा हड़प लिया, या फिर एकदम टिपिकल बिजनेस है उनका, बेसिक वाला एरिया वाला बिजनेस, आई वोंट नेम द बिजनेस व्हाटएवर। तो ये हो गया, तो एक दिन वो गफलत में मिल गया, और ये गफलत में इसने पूछा कि चूतिया तूने मेरे को, तेरे नाउ दिस इज माई एरिया पर्टिकुलर है, डोंट कम हियर। फॉर एग्जाम्पल मेरा वड़ा पाव गाड़ी है, अगर ये एरिया में गांडू मत लगा, और तू पहचानता है, तू मेरे साथ काम किया, और तू मेरे एरिया में वड़ा पाव गाड़ी लगाएगा तो मेरा धंधा टूटेगा। एक गफलत में ढूंढ रहे थे उसको, कभी 6 महीने में ढूंढ रहे, 6 महीने नहीं मिला हो, कभी ऐसे ही चल गफलत में मिल गया एक दिन, और सुबह इसका घर पे झगड़ा हो गया था। अब वो फ्रस्ट्रेशन, उसको इतना मार के उसके ऑफिस में शटर बंद करके भर दिया, फुल खून वून फोड़ दिया उसको। और ऐसा घर है कि उसका ऑफिस नीचे और ऊपर घर है, घर वाले आ रहे नीचे शटर खोलने, वो शटर ही नहीं खोला, इतना मार के उसका संतुष्ट हो गया वो, फिर छोड़ा। फिर क्या हुआ, नाउ इज लाइक इन हिज 30s, तो अभी कैसा बच्चे हैं छोटे जो, तो ही वाज टेलिंग मी, हम लोग बात करते कि देख मारा, मेरा ईगो सेटिस्फाइड हो गया, सब कुछ हो गया, मेरे को मजा आ गया, मैंने उसको मार दिया, मेरा भड़ास निकल गया। लेकिन आफ्टर इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, कि बहन चौकी जाना है, घर पे पुलिस आ रही है, ये सब तुम अर्ली 20s में होना, तुम कॉलेज वॉलेज में कर लो।
लेकिन अभी भैंचोद बच्चे हैं, बीवी है, खतरा ये बढ़ गया है। Exactly. तो ये गुंडागर्दी वाला देखो वही बात है ना कि अभी जैसे तू बोल रहा है ना जिम इट इज नॉट अ रिंग फाइट, इट्स अ रस्ते वाला चीज। यू शुड नॉट ऑल्सो जिम वाला पीपल हु आर गेटिंग इनटू दैट जोन की ये हम सीख लेंगे एक और एक स्किल। ये स्किल तुम सिर्फ जिम वाला स्किल नहीं है, लाइफ स्किल सीख रहे हो तुम। लाइफ स्किल है ये। तुम बहन जो चूतियागिरी कुछ कर दोगे कहीं और तुम्हारे चूतियागिरी के तुमको मालूम नहीं है चक्कू है वो घोप देगा, तुम क्या करोगे? तुम वो माइंडसेट में आ नहीं सकते कि मैंने आज बहन 3 कॉम्बो सीखा है, हाँ ये आज मैं जाके किस पे टेस्ट करता हूँ, मेरे को Exactly, पीपल जोन में रहते हैं वैसे। जब मेरा सीन हुआ था, हाँ। जब मैंने उन 3 बंदों को फेंक दिया स्काईवॉक से, तो फिर और भी 2 थे। हाँ। अगर लाइक बिफोर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एमएमए से, उसके जो पहले वाला माइंडसेट था मेरा, अगर मैं वही माइंडसेट उस टाइम पे रहता मेरा, तो मैं भागता उन दोनों के पीछे भी। मैं उनको भी फेंक देता, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? 40-50 किलो के लड़के रहेंगे, एक हाथ से उठा था मैं उतना राइट। तो मैं ऐसे ही फेंक देता उनको, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्रो। मतलब फिर मेरा वो एंगर इशू आ जाता ना कि बीच में कि ऐसा ऐसा है, बट नहीं, दैट टाइम आई डिसाइडेड टू ग्रैब माय फ्रेंड एंड रन अवे। मैंने वही किया एग्जैक्टली। एंड इट इज नॉट कावर्डली, नॉट एट ऑल कावर्डली, बिकॉज़ द फैक्ट यू नो भैंचो इसकी मात चोद दूंगा अगर ये मेरे से भिड़ेगा तो, और क्यों अपन किसी का लाइफ बर्बाद करें। ऐसे काफी सिचुएशंस हुए कि लोग मेरे से मतलब ऐसा कर रहे कि लड़ मेरे से, तू लड़, तू मैं देखता हूँ क्या है, कौन सा है फाइटर है। मैंने बोला ब्रो मत, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे, तू ऐसे चले जा। अगर मुझे डर लग रहा है कि तेरा मर्डर हो जाएगा मेरे हाथ से, लाइक मैं नहीं चाहता फिर बाद में वो केस वगैरह, क्योंकि मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि लाइक मेरी वजह से कभी मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम एग्जैक्टली अपने पे अगर मैं अलग रहता या फिर कुछ भी, तो मेरे को किसी चीज का डर ही नहीं। इफ यू हैव नथिंग टू लूज तो ठीक है। अरे देयर इज नॉट इनफ नॉलेज। वो है ना जो अभी जो जैसे ना अभी जैसे क्रॉसफिट आया ना पिछले 5 साल के रेंज में, जिम्स में क्रॉसफिट करने लग गए लोग। क्रॉसफिट नहीं करते वो लोग। I'll tell you, अभी मेरे को ये चीज के ऊपर बोलना, छोटी सी बात, एक छोटी सी बात बोलनी भाई। क्रॉसफिट नहीं करते लोग, इनको फैंसी बैटल रोप करना है, ठीक है, डालना ना स्लो मोशन। हाँ, इनको पुलअप्स करने। पुलअप्स किधर हो सकता है इनके हिसाब से? क्रॉसफिट जिम में ही हो सकता है। रस्सी उड़ी करना है इन लोगों को, स्किपिंग बोलते हैं जिसको। अरे रस्सी उड़ी इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है बहनचोद, इधर स्टार्ट हुआ, और तुमको ही नहीं आता है। हाँ, तुम फॉरेनर्स के वीडियो डालते हो वहां पे, इंडियंस फॉरेनर्स के वीडियोस डालते हैं कि वो लोग डबल अंडर्स कर रहे हैं, ट्रिपल अंडर्स कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस स्किपिंग कर रहे हैं, बहुत सारी। अरे भाई इंडिया से शुरू हुआ है वो स्पोर्ट, तुम उसको क्रॉसफिट में इंट्रोड्यूस, वो अरे वो क्रॉसफिट का पार्ट है ना, बॉक्स के ऊपर जंप कर दो। इनको पता है बॉक्स के ऊपर, इन लोगों को कुछ नहीं पता। आज भी मैं बोलूं, इन लोगों को पूछ लो जाके इमाम्स क्या होते हैं, आरएफटी सेट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं पता रहेगा। ये चीजें नहीं जानते हैं लोग, एग्जैक्टली। बस इनको पता है अपन क्रॉसफिट जिम में जाते हैं। अभी जैसे वो रेज पिछले कुछ सालों पहले क्रॉसफिट था, फिर अभी क्या है पावर लिफ्टिंग हो गया है। Now there is this thing कि celebrities bench और for the whole bunch of audience, people are only following the trend. सिर्फ that's trend the follow thing, करे पहले। But ये भाई पहले dangerous जिम का है। आया, This hypertrophy is super proper, dangerous. yeah exactly. For the whole crowd it is going to be like that, right? It is dangerous. It is not like you're lifting weight or you're lifting. This is a thing you are going to hurt. You might hurt someone. Yeah. ये तुमको जान का खतरा है, किसी का लफड़ा वाला खेल है ये। तुम ये बहनचोद स्किल इसलिए नहीं सीख सकते कि बहनचोद मैं मारने के लिए रेडी रहूं। नहीं भाई, इट्स लाइक काम योरसेल्फ डाउन, यू शुड नो। ये तो बचपन से सिखाना चाहिए। एंड सीखना इज ऑल्सो लाइक यू हैव टू लर्न फ्रॉम अ प्रॉपर पर्सन। इट्स नॉट लाइक अ 6 months थिंग। हाँ, नो एग्जैक्टली। पता है, while learning boxing also, you never know, you can anytime dislocate your shoulders. मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है। I know, like अगर proper guidance नहीं है, in any field, not only in MMA, वो एक ज्यादा हाई कॉम्बैट स्पोर्ट है, तो इसीलिए बट वो अगर कोई जिम में भी हो गया, लाइक पुश प्रेस के टाइम, एंड अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो फिर इंजरीज हो सकती है। प्रॉपर गाइडेंस कंसीडरिंग मैं बताता हूँ। अभी जैसे ये ना, मुझे अभी शेरा ने जो बोला ना, मैं उसको ना थोड़ा और डीपली बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो व्हेन यू डोंट नो द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट इट इज, हाउ आर यू गोइंग टू टीच समबडी एल्स? एग्जैक्टली। तुमको पता नहीं कि पंच किस तरीके से लगने वाला है, तो तुम सिखा कैसे पाओगे कि पंच इतना मारना है? I'll tell you, this happened with me a lot of times. Like I've observed all those things. ठीक है, मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा है कि तुम एक नया बंदा आया आज जिम में, you don't know his intensity, you don't know how well capable he is of doing that particular movement. There are levels of movements. ठीक है, those are not just theoretical concepts. These are the concepts on the basis of how you see some person. Exactly. जैसे एक इंसान आया तुम्हारे पास, you see him, you differentiate him from the other people by judging his bodily movements. ठीक है, उसके बाद तुम उसको 4 movements देते हो।
अब तुमने आज उसको बिठा दिया, बोला आज ये दिन बंदा मेरे जिम में नया आया है, आज इसको वर्कआउट कराते हैं। तुमने उसको 4 मूवमेंट्स दे दिए, रेपिटेशंस। नाउ द पार्ट कम्स रेपिटेशंस, द ड्रिल पार्ट इन योर इन स्पोर्ट्स ड्रिल हो जाता है, वो हमारे ड्रिल्स करने हैं। अब ड्रिल्स में तुम कितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस ले रहे हो, वो सारी चीजें आती है। सेम गोज टू एक एक्सरसाइज में भी वही हो जाता है। बंदे को दे दिया 25 रेप मारो इसके। द पॉइंट इज मूवमेंट में होते हैं, जैसे 25 रेप्स तुम कौन से मूवमेंट से कर सकते हो इजीली, कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट से 25 रेप डजंट मेक एनी सेंस, एक्सेप्ट बॉडी बिल्डिंग। 25 रेप 30 रेप 40 रेप सेंस नहीं बनाता है। बॉडी बिल्डिंग में सारे लॉ ब्रेक होते हैं भाई, उधर बहुत ज्यादा मसल फैटिग करना पड़ता है, इट इज अ डिफरेंट थिंग अगेन। अब उस बंदे ने दे दिया इसको कुछ तो 25 रेप्स के सेट बना के दे दिए। उस बंदे ने 2 सेट करे, तीसरे सेट में बंदा बोल रहा है भाई मेरे से नहीं हो रहा है, बोल रहा है पुश कर। उसने तीसरे सेट में जाके उल्टी कर दी, ठीक है, उल्टी कर दी। मैं बोल रहा हूँ द पॉइंट इज नॉट उल्टी करी, उल्टी चलो हो भी जाएगी, सुबह सुबह आया वर्कआउट करने के लिए उल्टी हो भी गई। तुमने 25 रेप के 3 सेट कैसे दिए उसको? पहली तो चीज क्वेश्चन करने के लिए है ना, तुमको पता ही नहीं है कि वो 25 के 3 सेट्स में कितनी इंटेंसिटी जानी होगी, क्योंकि तुमने वो चीज किया नहीं होगा। तुमने सिर्फ डंबल उठाए 24 महीने 12 महीने तुमने डंबल उठाए, तुमने यहाँ से वहां भागने वाला काम तुमने भी कभी किया नहीं। आई डोंट बिलीव इन दैट पर्टिकुलर, यहाँ इस कोन से लेके उस कोन में जाना, सिर्फ लैडर लगा के लगाना। भाई तुम लैडर लगाओ के कराओ, स्पोर्ट्समैन को कराओ, तुम स्पोर्ट्स में जो बंदे लोगों को कराओ, तुम एक क्रिकेटर को कराओ, तुम एक फुटबॉलर को कराओ, तुम किसी स्पोर्ट में कोई बंदा उनको ये ड्रिल्स कराओ, द रिफ्लेक्सेस वाले ड्रिल्स। Exactly, वो भी चलो ठीक है, तुम नॉर्मल इंसान को भी करा रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देन कम्स दैट पार्ट कि वो इंटेंसिटी पे अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, फाइंडिंग द राइट कोच, दिस डेफिनेटली इट मैटर्स व्हेन यू नो कि भैंचो तुमको सही तरीके से पता है उस चीज को करना कैसे है, उसमें कितनी इंटेंसिटी लगने वाली तुमको पता है। वो बंदा भैंचो फुल जोश में बोला नहीं सर मैं 50 नहीं 100 करूंगा, मैं तो मसल स्ट्रेन आ जाएगा लोड़े। ये बॉलीवुड की मूवी इनको लगता है ना कि एक राइट कोच विल Brothers, नेवर, Brothers देख इनको लिया। लगता है हाउस द जोश करके मेरे को भी crane पे बस चढ़ने बस का। बस बस Brothers वैसा तो है movie नहीं। जैसे, हाँ। ये बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही कि कोच ने बोला अरे नहीं बेटा तेरे अंदर आग है मुझे दिख रहा है, तेरे अंदर आ गया, ये नहीं तेरे अंदर होता। पोटेंशियल तू कर लेगा, तू कर लेगा बेटा, तेरे को क्या छुड़ाने, कंगन छुड़ाने माँ के। नहीं यार ये बहुत स्टूपिड है। एंड वही ना काटो ये काटो इसको, एक पार्ट काटो। सेलिब्रिटी लोग भी अभी सब पैड्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो एक रेज आ गया है दिस अल्ट्रा रिच पीपल और अपर फर्स्ट क्लास पीपल और व्हाटएवर कि भाई अपन पैड प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक कोच को दे दी कि 30,000 रुपया महीना, वो आएगा संडे और प्रैक्टिस कराएगा। नहीं होता वैसा भैया, इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। तुम इट्स बेटर यू डोंट गेट इनटू इट और इट लर्न इट एज अ सेल्फ डिफेंस थिंग, एंड इट इज वेरी मच इजी यार। वो टिपिकल ह्यूमन अपन ऐसे हैं कि अपन मारामारी के रेंज में सीखेंगे तो अपना दिमाग चलेगा ही, अपना पर्सपेक्टिव चेंज होएगा। अच्छा क्यों देख रहा है मेरे को, वही तो नहीं होना है। और ये कौन समझ पाता है जो लॉन्ग टर्म एक्चुअली सोच रहा है मुझे फाइटिंग एज अ स्किल सीखना है, एज अ स्किल सीखना है, ये मेरे को मेरे लाइफ के लिए बहुत। और यहाँ इस देश में अपने बच्चे जो अपने एज के बच्चे थे वो क्या ज़्यादा कराटे किया, भैंचो 2-3 साल किया, स्प्लिट सीख लिया, हो गया, किक सीख लिया, ब्लैक बेल्ट हो गए। ब्लैक बेल्ट तो ऐसे होते हैं भाई, माँ ने बोला है 2 ब्लॉक कर ले। बस। मुझे आज तक नहीं समझा कराटे स्पोर्ट का क्या यूज है इन रियल लाइफ। सामने वाला तुमको मार रहा है, तुम ब्लॉक करते बैठोगे, नो ब्रो। जूडो इज डिफरेंट, कराटे इज डिफरेंट, जुडो इज डिफरेंट, judo are very similar to wrestling. And that is the reason they say if you are 25-30 and if you are from the background of judo, तो तुम उसको कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। Yeah, exactly. Why judo is very dangerous. I saw a video where Habib is talking about. I know many judo moves. Henry Cejudo Cejudo, yes, Cejudo yes. उसका Habib बोलता है कि what would you Cejudo उसको पूछता है what would you choose a wrestling guy और judo guy, तो वो judo Habib बोलता है judo। तो अभी हाँ, तो I wanted to ask you what is your base like for what is your expertise? Wrestling and BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Yeah. So but you started with boxing first. I started with Taekwondo. Aichi gone, sweet bro, very good. I started with Taekwondo. Then I'm first and black belt right now. Nice. Then I'm going I have to go and train back again in Mumbai to complete my second and black belt. But that is I'm not planning it right now. I have lot of time. Right. You're 21 now. But I'll tell you something. In MMA, the workouts we do are not usual workouts. Like basically very similar to CrossFit. Like battle ropes, burpees. Exactly. वो सब तो that is very common workout. It comes when like any normal gym person can lift heavy weights and can push press, right? कितना 80-90 किलो max 100 120 125 भी मार देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी मतलब इसको जिम वाले इंसान को कि तुम किसी इंसान को उठा के कर सकते हो क्या?
because it's very difficult The to weight lift distribution only. and everything. Yeah, weight distribution, balancing, Right. like grip. Yeah, मैं 2 इंसान को पीठ पे बिठा के स्क्वाट्स मारता हूँ. मैंने 80 किलो के बंदे को लेके पुश प्रेस किया है. I Like number. initially it was not easy. Right. बट यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ कि तुम ये कर सकते हो क्या. अगर तुम इस फील्ड में हो तो तुमको अपने लाइक इट्स नेवर स्टॉपिंग. तुमको अपने आप को एक्सप्लोर करना कभी You have बंद to नहीं challenge करना है. yourself in Yes, every other in way. Got it, every got it, aspect. got it. In a very technical way. In ऐसा very नहीं कि technical way, गफलत yeah. में कुछ भी Yeah. कर रहे. I'll tell you. Shout out to my new trainer, संकेत पालव. मैंने एक जिम ज्वाइन किया था वाशी में, समारा. Okay. देन वहाँ पे वो ट्रेनर था, Hmm. है आई मीन अभी भी. तो उसने मेरे को बोला कि लाइक तुम शेरा हो ना कि ऐसे एमएमए फाइट खेलते हो. मैंने यस ब्रो. तो उसने भी फाइट खेले थे स्टार्ट में. एंड उसने वो उसका बेस स्पोर्ट ग्रैपलिंग था, ग्रैपलिंग एंड बीजेजे. एंड दैट टाइम आई डिडंट न्यू. मतलब मुझे नहीं आता था ग्रैपलिंग क्या होता है. ग्रैपलिंग मेरे को बस इतना पता था कि लोगों को उठा के फेंकना है, लाइक प्रॉपर ये. मतलब मेरा कभी भी गेम संकेत से मिलने से पहले इट वाज नेवर टेक्निकल. Okay. इट वाज ओनली बेस्ड ऑन पावर. Okay. व्हेन आई मेट दैट गाय, हम लोग ने सोचा कि लेट्स डू समथिंग. देन वी ओपन कैट्स किल एमएमए. Okay. Sweet. उसने ही taught me grappling, BJJ. Sweet यार. Initially he is only 60 kgs bro. I'm 120 kilos right now. Double He still makes me tap. Fuck dude, that's He sweet. makes me tap. Fuck. Can you even I imagine? got that Like one. he has his body volume is less, Huh. but whenever he's above me, Huh. he like he moves like a snake. He moves like a snake, and I don't know. Like initially, he used to make me tap within seconds. Like then I asked him, like, please teach me. Yeah, right. Like we have started a business. Now we are planning to grow it and Right. put it on the map. Right. देन उसने मेरे को काफ़ी लाइक ग्रैपलिंग उसने मेरा पॉलिश किया अच्छे से. रेसलिंग मेरा काफ़ी बेटर था पहले से ही, बट ग्रैपलिंग व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड मैंने रियलाइज किया कि तुमको पावर की जरूरत ही नहीं है. पता है, Technique, bro. लाइक यू डोंट नीड स्ट्रेंथ एट ऑल इन ग्रैपलिंग एंड बीजेजे ब्रो. Okay. लाइक इट्स ओनली Technical. इट्स Highly technical. प्रॉपर टेक्निकल. Bro, I've recently I've been watching Gordon. Gordon Ryan, yeah Fuck, bro, dude. look at him. He's अरे- crazy. He doesn't use strength. Bro वो ऐसा है ना, मतलब तू उसको ज्यादा बल्कि भी नहीं है वो. मतलब he's I guess he's the best grappler in the world. But he's on anabolics. हाँ वो तो उसने एक्सेप्ट किया ना. वो हाँ तो. एक्सेप्ट किया और करते हैं लोग. हाँ करते ही. और फाइट गेम में होता ही है, बट एक्चुअली उसको मारामारी नहीं है करके लिए मारामारी यूज करना नहीं है, या use थोड़ा करना तो जस्टिफाइड ठीक है. है, हाँ. माइक टायसन ने एक बार बोला कि तुम कॉम्बैट स्पोर्ट्स में वेंचर ये टोचा उचा मत मारो, नहीं कर because you सकते. might hurt someone. Right. या Bodybuilding is a different या वो इतना एक सीन बताता हूँ. लाइक मेरे साथ ही हुआ था. हम लोग का ग्रैपलिंग मैच था. उस टाइम पे मेरे को ग्रैपलिंग नहीं आता था, बट मैंने बोला था कि चलो, वो काफी साल पहले की बात है. राइट. बोला चलो जाते हैं. एक वेस्ट बंगाल का रेसलर था और हाइट में काफी छोटा था, बट वो एंड ही वाज 140 केजीज. वो इतना ह्यूज था ना ब्रो कि मैंने सोचा ये हाइट में तो छोटा है, बट मैं इसको पकड़ूंगा कैसे. और मेरे को टेक्निक्स नहीं आते थे. नो टेक्निक्स एट ऑल. कुछ टेक्निक्स नहीं पता ब्रो. मेरे को बस पता था कि लोगों को उठा के फेंकना कैसे, उतना ही पता था. कैसे फेंकूंगा मैं उसको. एक तो बॉडी वॉल्यूम इतना बड़ा है. लेजिट जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ ना, मैं उसको सोचा चलो इसको पकड़ता हूँ. मैं आ गया उसके हाथ में इजीली ब्रो. उसने मेरे को लेजिट नीचे पटका और वो मेरे ऊपर बैठ गया. उसने पूरा वो एक राउंड सिर्फ वही किया. वो उसने अपना चेस्ट पूरा मेरे मुंह पे रखा. मैं उसको ऐसे ऊपर उठाने का ट्राई करा, वो उठ भी नहीं रहा मेरे से. मेरा हाथ अंदर जा रहा है उसके बॉडी के. मैंने बोला ये तो गलत सीन हो गया था काफी. और ना वो काफी मतलब उसके ना फेस पे दिख रहा था कि वो काफी एग्रेसिव था. तो मेरे को पहले राउंड में डाउट आया. मेरे को लगा इसने कुछ तो गलत किया है. ऐसा डाउट तो आ गया. पता चल ही जाता है, जो एक्सपीरियंस है उसको तो पता चल जाता है. तो फिर मैंने बोला देखते हैं. तो फिर सर्वाइव किया मैंने वो पहला राउंड. फिर आता है दूसरा राउंड.
तो फिर मैंने बोला कि अभी तो मैं इसके हाथ में नहीं आ रहा ब्रो, हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा, हाँ क्योंकि आ गया तो फिर ये मेरे को खत्म कर देगा और Right. मेरा स्टैमिना चला गया पहले राउंड में। Right. इतने बड़े इंसान को हाँ. मैं कैसे ऊपर उठाऊं, हाँ राइट उसको हिला भी नहीं पा रहा हूँ मैं। देन मैंने सेकंड राउंड में मैं उसके हाथ में ही नहीं आया, मैंने उसको पूरा राउंड भगा रहा हूँ एंड आदमी एक टाइम पे थक जाता है तो वो खुद ही वो ऐसा ये कर लिया, मतलब ऐसा पूरा ये छोड़ दिया और ना उसका नोज ब्लीड होने लग गया। तो मैंने वो एडवांटेज उठाया और मैं उसके बैक पे चढ़ा और मैंने उसको रेयर नेकेड चोक ले लिया। खत्म हो गया उधर। जैसे ही मैच खत्म हुआ ना, मैं बाहर गया, मैंने बोला, मैं अपने कोच के पास गया, मैंने बोला सर इसने ना कुछ तो गलत किया है, आप ना जरा जाके ना मतलब उसको जाके देखो। हाँ, छोटा था टाइम पे, मैं फुल एक्साइटमेंट बस, सर ना इसने कुछ गलत किया है सर, आप जाके देखो सर। बोलते हाँ क्या? तो मेरा सर गया है वो मतलब वो इवेंट ऑर्गेनाइजर के पास कि इसका मेडिकल करो, और इसने मेडिकल किया और उसका निकला। और वो टाइम पे मेरे को इतना मेरे को पता है कि क्या होता है, लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, मैं फुल एकदम हाइप्ड अप हो गया। बट जितने उसके एडवांटेजेस है फाइट में उतने भी, और ना मैंने जितना नोटिस किया है जो भी करता है ना ये फाइट में तो बहुत अच्छा करेगा, बट आफ्टर फाइट उसको फिक्स वॉमिट होता है, फिक्स होता है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बिकॉज यू आर डूइंग इट बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज, राइट? एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग। और वो लॉन्जेविटी के लिए भी अच्छा नहीं है। और एक और चीज़ ना भाई, ये बहुत फ्लैशी चीज़ हो चुका है कि आई मीन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू यू नो काम योर माइंड बाय थिंकिंग कि भाई मैं नेचुरल हूँ, मेरे पास ताकत है, बहुत अच्छी ताकत है। हम तो नेचुरल होने के बाद भी जो लोग एनहांस्ड है उन लोग से बेटर कर सकते हैं। यू हैव टू लॉजिकली सेटल योर थॉट्स टू दिस कि जो एनहांस्ड होता है वो एनहांस्ड होता है। इट इज नॉट कि तुम्हारे अंदर शंकर भगवान की बजरंग बली की ताकत आ जाएगी और तुम उस एनहांस्ड एथलीट को हरा सकते हो डायरेक्टली ऐसे। यस, यू डेफिनेटली मस्ट हैव समथिंग एक्स्ट्रा इनसाइड यू, द ट्रिक्स एंड एवरीथिंग। तब तुम हराओगे उसे। यू हैव टू फाइंड अ लूप होल, ओनली देन यू कैन नॉट डिफीट हिम विद द स्ट्रेंथ। He's got it enough, है ना? हाँ, ये अभी तो आई थिंक अभी जो ये बॉडी बिल्डिंग कल्चर में पीपल लाइक इन आवर कंट्री, अपन अपने कंट्री या कंटेक्स्ट रखे तो अभी लोग थोड़ा ओपनली बोल रहे हैं। नहीं तो पहले तो टोचा बोलेगा तो पब्लिक वे प्रोटीन बोलो ना, अरे वे प्रोटीन का ये डब्बा लेता है, डब्बा इसने डब्बा खा के बॉडी बनाया है, इसका नेचुरल बॉडी नहीं है। डब्बा बहुत ज्यादा ये अभी तक है। एक्सेप्टेंस आ रहा है धीरे धीरे। लाइक आई स्टिल हियर पीपल कॉलिंग मी आउट एंड बोलता है कि नॉलेज नहीं है ना लोगों को नॉलेज ही नहीं दिया है वो राइट टाइम पे। ABCD आता नहीं ऐसे लिखने का लोगों को, देन हाउ दे कैन लाइक जजमेंटल बहुत है अपने देश के लोग, बहुत जजमेंटल। मैं अभी ना बहुत इतना मैं एक्साइटेड के साथ ना मजा आ रहा है, पता है क्या मजा? हाँ देख, अभी लास्ट यू जैसे अभी यू आर अ ट्रेनर, तू बेसिकली सबको बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से ट्रेन कर रहा है। सो ये तो जैसे तू बोल रहा है कि तेरे पास लोग पूछते हैं कि मुझे वेंचर MMA सीखना है या सीखना है, सो व्हाट इज देयर फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम इट, कि उन लोग क्यों सीखना चाहते हैं? वही, that is the reason they just first thing everybody a general in if you consider a general population they belong to the general population, same like us, not him, us. We belong to the general population. नहीं, हाँ, you are into that, you don't belong to it, you have a different mindset, totally different mindset, and you are now programmed that way कि मुझे मेरा पर्सपेक्टिव कैसा बनाना है मुझे चीज़ों को लेके। नाउ इफ अ पर्सन इज एंटरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, द पीपल लाइक अस, वो लोग यही सोचते हैं कि मेरे अंदर एक एडेड स्किल आ जाएगी, एक नई स्किल मैं अचीव कर लूंगा। दूसरा चीज़, अगर मेरे को किसी ने रास्ते पे हिट किया बिंगरी घुमाता है तो मेरे को भी तो मारने को आना चाहिए ना। पर वो चीज़ वही चीज़ है, दैट इज द ओनली थिंग। ये दो चीज़ें बस, और कुछ नहीं। एडेड स्किल और मेरे को कोई मेरे को कल को जाके मारे तो सिर्फ बॉडी नहीं, अंदर दम भी रहना चाहिए। और लेकिन रास्ते की मारामारी ना यार, लोगों में जिगरा होना चाहिए बस। आई थिंक रास्ते की मारामारी, अभी आई हैव अ फ्रेंड बबलू करके, ये बचपन में हम लोग बचपन से अपन भी मारामारी ये वो करके जो भी बड़े हुए हैं करके, तो मैं उसको बोल रहा था ना, तो मैं मशीन लेस करके जिम था, उधर एक बैग लगा, मशीन लेस वर्कआउट, हाँ, तो उधर कोई करता नहीं था वर्कआउट, तो मैं जाके वो बैक पे, क्योंकि मेरे को ना वेट ट्रेनिंग दिमाग पे जाता था मेरे, तो मैं बैक पे ही प्रैक्टिस करता रहता था। तो कराटे वाले सर भी बोले भैंचो तेरा हाथ तो अच्छा है करके। मैं बोला सर किक सिखाओ, मैं तेरे को कल ही परसों बोल रहा था, मैं सर मेरे को किक सिखाओ फिर। ये हाथ, अगर आप बोल रहे हो हाथ अच्छा है तो शायद अच्छा होगा, मेरे को तो लगता था, मेरे को दिख रहा है अच्छा लग रहा है करके। किक सिखाओ, उन्होंने भैंचो मेरा अडक्टर मसल स्ट्रेच कर दिया पटेली के चक्कर में। I'll tell you the straddle stretch, हाथ पकड़ लिया, खींच लिया भैंचो, तो मेरे से ना मेरे किक ये राइट अडक्टर के लौड़े लग गए। तो ये यही सेम चीज ना, आई यूज्ड टू, मैं रिकॉर्ड करता रहा कि मेरा भैंचो लेफ्ट हुक क्या जा रहा है, बॉडी हुक क्या जा रहा है, लगता है ना यार अपन रिकॉर्ड करके दिख रहा है यार वीडियो में। तो एक दिन मैं बबलू को बोला, बबलू इज अ बचपन से अतरंगी लड़का है, ठीक है,
बबलू भैंचोद अभी ना मारा मारी किसी ने ना ऐसा मारूंगा ना ऐसा मैं फुल इमेजिन मैं उसको पिक्चर बता रहा हूँ, बोलता जरा मार के बता। मैंने उसको मारा मतलब अच्छा खासा उसको मारा बेंच, घंटा कुछ नहीं हुआ उसको, मतलब देन आई रियलाइज्ड। और उसने बोला अब तू मार, और वो मेरे से पतला भाई, उसने दिया मेरे को पैक हो गया मैं बोला भैंचोद। ये बोलता देख ये सब ठीक है तो स्किल सीख रहा है, तेरा ही पावर मेरे को स्किल मेरे को मान लो टेक्निक बहुत अच्छी हो गई है, अब पावर अपन डालेंगे इसमें कैसे, तो उसने मेरे को बताया। लेकिन बोलता है देख जिंदगी में 1700 मारा मारी की है, हमारे तरह गणेश करके लड़का रहता है, इतना कड़का है बोलता, लेकिन वो इतना मारता है ना सामने वाले को, तू बोलता है ये जिगरा का खेल है, या तो तू एक 6-4 के चौड़ लड़की में भी दम नहीं होगा, उसको अपने बॉडी पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। स्ट्रीट फाइट का ये है तुम्हारे से अंदर जिगरा है। मेरा डैडी में यूज्ड टू टेल मी द सेम थिंग, गुंडा बनना है ना जिगरा रखो, जिगरा रखो, हाँ करेज For नहीं है every- तो for फिर every- कहीं नहीं। तो लोग का चाकू रहता है वो नहीं मार पाएंगे लोग, मार खाने का जिगरा रखो, मारने का जिगरा तो किसी के अंदर भी आ जाता है ना। लेकिन लोगों के अंदर मारने का भी जिगरा नहीं होता, ये भी है। लोगों के अंदर ऐसा रहता है ना कि नहीं सी वायलेंस ऐसे ही नहीं आता ना दिमाग के अंदर। हाँ, एक चीज है violence वायलेंस, जो danger लोग है। वायलेंट इंसान है वो लोग को मारने का जिगरा तो अंदर से रहता ही है। violence is danger dude, And that frustration- I asked my dad कि why do people, ऐसे हम लोग बात कर रहे थे वायलेंस, मारा मारी, गुंडागर्दी, बिकॉज द एरिया आई कम फ्रॉम अर्लियर टू स्टे, उधर बहन हर दूसरे दिन कोई इसका हाफ मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, लफड़ा यही हो रहा है। तो माय फैमिली, अभी मैं एक अंकल है मेरे काफी क्लोज, उन्होंने एक का घुमा दिया था, मैं खत्म कर दिया था एक को बहुत पहले। तो आई आस्क्ड माय डैड कि ये क्यों होता है, व्हाट हाउ डज लाइक लव तो पता है लोग बहन बकचोदी करते हैं, लव करो ये करो सब कुछ करो, बट हाउ डज द हेट थिंग वर्क। तो माय डैड ना बहुत बहनचो फिलोसफिकल बोले, बहुत बात सही बात बोली, बहनचो लव इज नथिंग, यू आर प्रोग्राम टू लव। हाँ तुमको अभी चलो पिछले 600 साल से ना तुमको प्रोग्राम कर दिया प्यार करने के लिए, क्योंकि वॉर वाला एरा खत्म हो गया ना, ये लाइक शांत होते हैं। बट हेट इज समथिंग यू हैव टू, क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब तुमको बहुत श्रद्धा चाहिए हेट करने के लिए किसी को, और किसी को मारने के लिए तुमको पता है यू कुड किल समवन, है ना, तुमको जान लेना, तो वो लव से बहुत स्ट्रॉन्गर है। माई अंकल किल्ड समवन जस्ट बिकॉज उनका दोस्त को उन्होंने बदतमीजी कर दिया, या एरिया में बकचोदी कर दिया। ये लोग ने रात को उसके भाई को पकड़ लिया, पहले उनको लगा वही बंदा है, उसको कर दिया, उसका उंगली गायब कर दिया 3, उसको पता चला वो नहीं है, फिर गए। तो माई अंकल किल्ड गॉड, उनको वार वार किया, खत्म किया, ही वॉज स्टैबिंग हिज चेस्ट ऐसा, और बोलता है वेंचुद मैं इसका दिल निकालूंगा करके। बोलता वायलेंस इतना डेंजरस है ये, व्हेन यू आर ग्रोइंग राइट एट टीनेज 17-18 के लॉन्डो में ऐसा रहता है ना कि बहनचोद हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट क्या हुआ, उन्होंने मार दिया, खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, दोस्ती यारी में लफड़ा हो गया, बट फक्ड हिज लाइफ अप, राइट, फक्ड हिज लाइफ अप। तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि तुम ये बहनचोद 5 मिनट के रेंज में कर दोगे, ये मुक्का मारने वाला शॉट नहीं है, तुमको लग रहा है एक मुक्का मार दोगे, कोई एक मुक्के में मर जाता है। मेरे डैड का एक केस है, इन लोग दोस्ती यारी में रोड में इन लोग का लफड़ा हो गया कुछ, तो मारा ही हो गया, और उसको मार दिया इन लोग ने, थोड़ा भरा और छोड़ दिया। अब वो बीमार पड़ गया 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो चल दिया। अब ये केस हो गया, अभी फैमिली वालों ने कि इन लोग ने मारा करके ले हुआ ये, लेकिन वो पहले से बीमार था, वो ट्रिगर हो गया, खत्म हो गया। अब 3-4 साल पहले मेरे डैड को वो कोर्ट का हियरिंग जाना पड़ता था ना, तब वो क्लियर हुआ कि अच्छा ठीक है तुम लोग का ये नहीं था करके, विच इज ये कब की बात है, 2002-2003 की बात है, वो 3-4 साल अभी पहले क्लियर हुआ है कि डैड बोलता है देख वो हम लोग ने तो ऐसी दोस्ती यारी में मिल गए, दोस्त लोग मार दिया उसको, उसने हमसे बदतमीजी करके लफड़ा झगड़ा हो गया, लेकिन साला वो मर गया 2 हफ्ते बाद, वो हमारे गले आ गया। बोलते इसलिए मत हाथ छोड़ो, तुम पब्लिक में जाके हाथ मत छोड़ो। और ये जो नया रेज है ना कि बहनचोद अब जिम में हम बैग, अभी हर जिम बहनचोद बैग लगा रहा है, अब लोगों को लग रहा है फ्रस्ट्रेशन मशीन है। अरे बहनचोद तो फ्रस्ट्रेशन मशीन नहीं है, यू आर बेसिकली फकिंग योर ब्रेन अप, बिकॉज तुमको लग रहा है ना बैग को मार रहा हूं मैं, इतना पावर आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, मैं इतना जोर से बैग हिल गया, ये हो गया, अपने दिमाग में वही चलता है, ये आदमी खड़ा है सामने, अरे मैं आज बॉस की गांड मार रहा हूं, मैं इसकी गांड मार रहा हूं, नहीं, दिस विल ट्रिगर यू वन डे। कोई पानी पूरी खाते हो तेरी बीवी को छेड़ दिया, यू विल अननेसेसरली बीट हिम अप। See, that's the thing you said when you said love is nothing, hate is beyond that, hate is very much powerful. So I think it for the fact is real, because real बोलूंगा मैं इसको इस तरीके से ना, love needs no action, doesn't it just लव नीड्स लव तुम कंट्रोल एक्शन रख सकते हो, कंट्रोल एक्शन एक तरीके से बोलूंगा, see it doesn't need any action का reaction, right it is that is the reason it is nothing, but it is beyond everything, you can say. Hate needs action, hate needs planning, you work evil, समझ रहा बहनचो तू एकदम फील्डिंग लगाएगा किसी का, and that is the reason it feels that it is way too much, way heavier, right है ना, बहुत डेंजर है भाई। लाइक अभी बहनचो, अभी नाउ टॉकिंग टू हिम आई एम रियलाइजिंग कि how calm it is,
मतलब तुम बॉडी बिल्डिंग तुम मुझसे अच्छा मारामारी सीखो और शांत रहो. Seriously, bhai, when No, we no, know actually, I have a very big message to the youth. Hmm. Don't involve yourself in any kind of street fights. Exactly. Yeah, and if you have such a mindset, then please don't come into MMA. हाँ. Yeah, like you stick to whatever like bullshit you're doing. Yeah, whatever, whatever right. bullshit you're doing. Like if you want to come to MMA, be prepared for calmness. I think people should It's only- go in as a sport. तुम Yeah. sport जैसा जाओ. स्पोर्ट वे में लो, sport जैसा आओ जाओ. रिंग में खेलो, compete बस. करो. अगर लाइक तुमको दिखा, अगर तुमको प्रूफ करना है ये वर्ल्ड को या फिर तुम्हारे किसी लाइक ऑप्स को, अगर तुमको प्रूफ करना है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो यार मैच में दिखाओ. किधर तुम रास्ते पे दिखा रहे हो ब्रो. I've also in the couple it's of such a years. cheap thought ना, मतलब Cheap तुम thought है. महीने के 5,000 भरोगे किसके लिए? रास्ते पे मारा रास्ते में And also, नहीं, ये उनका भी गलती नहीं है. I'll also tell you one thing. Now you are an owner, a gym owner or whatever. ये प्रमोशन भी ऐसा किया जा रहा है ना, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, जब ये हमारे gym MMA में का CrossFit वेव आया है, या लर्न टू फाइट. अरे लर्न टू फाइट, लोग तुम पोर्ट्रे क्या कर रहे हो? तुम लर्न टू फाइट तो बोल दिया, तुम्हारा वो पोर्ट्रेयल नेगेटिव ही जाता है कि हम तेरे को मर्द बनाने वाले बैंक छो, तू मारामारी कर सकता है. नहीं, मारामारी करना सीखो बेंचो. अच्छा, मारामारी ऐसा ओके. मत सिखाओ, तुम उसको स्पोर्ट जैसा सिखाओ. और बहुत लोग स्पोर्ट जैसा नहीं कर रहे हैं उसको. नहीं करते, उसको बस बेंचो मारामारी सिखाने के रेंज में जा रहे हैं. दिस इज ऑल्सो अ फॉल्ट ऑफ जिम ओनर बिकॉज दे कैपिटलाइज कर रहे हैं. या They know the wave thanks to Conor McGregor, thanks to whoever, Habib. Bro, I'll tell you a Mayweather. fact about Conor McGregor. Because of Conor McGregor, people in whole world knows what's UFC and what is Exactly. MMA. But Exactly. but when I went to Ireland, They don't. when I asked those people, the people of Ireland, when I asked them, they don't like Conor. Exactly, bro. They don't like Conor Exactly. McGregor at all. I saw He a video, is only influencing the youth of Ireland. I've seen people like sparring with each other on the roads. Like I thought that like it's great. It's only because of Conor. Right. When I spoke to people who are who are in their 30s and 40s, like proper adults, when I spoke to them, they said we don't like Conor because he is representing our country It's in a very negative manner. in a very negative way. Right. In sport it's different, but his outside personality, the way he's like what he's outside the training, his behavior with public is very negative. It is his mindset is built like that because of his sport only. हाँ, Like, right. it's the Because way you must have seen a video. उसका वो बहुत गाली खाया था उस चीज के लिए. एक बार में बैठा है वो आयरलैंड में, कहीं तो बार में बैठा है, एक बुड्ढे को भर दिया भाई उसने. उसका ही बार था वो. उसका ही बार था क्या? प्रॉपर 12 का ही था क्या? पर अरे और वो बहुत गलत हो रहा है वो एक्चुअली. नहीं, आई सॉ अ वीडियो रिसेंटली जिसमें ना एक यूट्यूबर है, ही इज इन आयरलैंड, ही इज जस्ट रोमिंग अराउंड, फकिंग अराउंड. तो वो यूथ को ही पूछ रहा है लॉन्डो को कि हु वुड यू चूज, लाइक हाउ इज कॉन. तो वो खुद भी शौक में और मैं भी शौक. बहनचोद इसको हेट कैसे कर सकते हैं? यूएसए में तो बेहिसाब प्यार है कॉर्नर को. एग्जैक्टली. हाँ, लोग लेंचो यूएसए के फाइटर को इतना सपोर्ट नहीं करते होंगे जितना कॉर्नर को सपोर्ट करते हैं. बट एग्जैक्टली. वो ये मेरा फ्रेंड अभी आयरलैंड 3 साल रहा, वही बोला बोले भाई कुछ नहीं है ऐसा, ये अपने करता जैसा है. नहीं है कि अपने देश में एक धोनी जैसा शॉट ही नहीं है, क्योंकि अपने दिमाग में वही चलता ना, अपने देश में धोनी कैसा है, उनके देश में कॉर्नर रहेगा, बोलते हैं वैसा शॉट नहीं है, बहुत डिफरेंट है. ये चूतिया ने इतना गंदगी क्योंकि उसने करके अपना रखा एक पर्सनालिटी मेंटेन करके रखा है. कॉर्नर पर्सनालिटी इज वेरी नेगेटिव ब्रो. यू विल सी कोई भी बड़े बड़े इवेंट्स में अगर उसके वीडियोस भी वायरल होते हैं, यू विल सी उसका वे ऑफ अप्रोचिंग आई थिंक पीपल ही नोज नाउ, very ऑब्वियसली ही नोज है, ऑब्वियसली ही नोज. बट वो ऐसा ही He's है, become like that. ऐसा ही Become like that. ऐसा ही था पहले से हाँ, शायद वो पहले से ही ऐसा था. अब वो trigger हो गया. हाँ, वो उसकी पर्सनालिटी वैसी है. अभी उसका माइंडसेट ऐसा है कि जिसको मेरा ये नेचर एक्सेप्ट करना है वो करेगा, नहीं गया फक इट, मैं क्यों भाव दूं. ये लाइक उसका But he is a very very अभी बता ना, देख उसने बहुत स्ट्रगल करके बहुत आगे आया. हाँ. बट अभी यूएफसी ने उसको ऐसा पपेट बना के रखा था ना. ऑब्वियसली यूएफसी ने इतना कमाया उसके चक्कर में, बिकॉज वो था पपेट. यूएफसी ने उसको अच्छे से डिजाइन किया, ये बिक सकता है, इसको बेचा अच्छे से ब्रो. वो अभी बेचा आज के टाइम पे सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है कॉनर मैकग्रेगर. उसने बेंचो $180 million उसको ब्रो. किसको बोला था? रोनाल्डो को बोला था. रोनाल्डो हाँ एग्जैक्टली. हाँ, तो कुछ तो फोर्ब्स का लिस्ट था या समथिंग. हाँ, उसका लिस्ट था. उसमें उस पे वो टाइम पे लाइक इट इज 5 years बैक, 2016 नहीं 16-17 की बात ही है. तो तभी उस टाइम पे रोनाल्डो टॉप पे था और मैकग्रेगर वाज ऑन 38th पोजीशन, 38. और वो बोला कि 5 साल दे मेरे को, मैं तेरे को छोड़ दूंगा पीछे. तो रोनाल्डो बोला विल सी. तो मैकग्रेगर बोलता है या विल सी. मस्ती मजाक. और फिर 5 दिन में मतलब 5 साल बाद ब्रो छोड़ दिया. पहले
आ गया ये पिछले 1-2 साल में ही आ गया, बहुत डेंजर है, छोड़ दिया भाई पीछे क्यों ये अभी लोग वो लेकिन इमेज खराब हो रहा है he's earning a lot of money. he's earning उसको a lot, और क्या earning चाहिए नहीं ब्रो, मतलब उसको हेट रेट से क्या फर्क पड़ कुछ नहीं फर्क पड़ रहा He's हेट way रेट above it. I mean, he's way beyond the reach of those people, हाँ, right? जो देख मुझे hate ऐसा दे लगता रहे है हैं, प्यार दे रहे हैं. कि जो लोग हेट देते ना, हेट के वजह से ही लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते, तुम बहुत जितना बढ़ते हैं। क्रिटिसाइज करोगे एक बट इंसान ये को देख वो उतना ही मोटिवेट होगा और आगे जाने के लिए। अगर तुम देख उस चीज को चैनल कैसे कर रहे हो वो भी मैटर करता है हाँ, ना। नाउ यू नो कि बेंचो हेट मिल रहा है और मैं हेट फॉलो तो सेंस ही नहीं बनता। हाँ। नाउ यू सी हबीब ऑन द अदर साइड, Yeah. इतना पॉजिटिव है, उसको कुछ फक ही नहीं दे रहा हो किसी को, ना उसको पैसे से लेना देना। पैसे अभी से उसने लेना बोला देना। मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ही नहीं है, डैना वाइट इज ऑफरिंग में $100 million की एक फाइट कर ले। वो बोलता केले पे नहीं करने का है। नहीं करेगा, नहीं वो, करने का भाई, नहीं किया करेगा। उसने। उसका वर्ड है वो, उसने रिटायरमेंट ले लिया, उसने बोला मेरी माँ बोली खत्म तो खत्म। उसकी माँ ने उसको बोला कि बस हो गया अभी फाइट करके, उसके चैंपियन बन गया, वर्ल्ड चैंपियन बन गया, बहनचोद साम्बो चैंपियन है, दुनिया भर का चैंपियन था ऑलरेडी, चैंपियन तो हो गया। और वो अभी यूएफसी चैंपियन। कॉनर को तोड़ दिया, कॉनर को तो कुत्ता बनाया। कॉनर को तो कुत्ता बनाया भाई, उधर ही लेजिट उधर के लोग खबीब का टी शर्ट पहन रहे। मैंने बोला कॉर्नर के शहर नहीं, मैंने ना खबीब को फर्स्ट टाइम जब सुना था ना उसका, बोलता I will kill Conor. I am a mountain man. अरे वहाँ के लोग लेजिट खबीब के मैंने बोला कॉर्नर के शहर में खबीब की बड़ाई चल रही भाई। बिकॉज द देख कुछ भी हो, इंडियन कुछ भी बोलो ना, धोनी शायद सचिन से बेटर प्लेयर ना हो या कुछ नहीं हो, बट द इमेज धोनी हैड, Yeah. जो प्यार वाला कि शांत Around आदमी, everyone around him, हाँ, right? मस्त हो गया ना इसलिए। और उसी चक्कर में विराट कोहली गाली खाता है है ना। हाँ, विराट उसके कोहली में भी violent nature की वजह से, बट yeah. वो उस चक्कर में गाली खाता है। तो इन दी एंड वर्ल्ड को क्या चाहिए कि एक अच्छा आइडल कोई बने। एग्जैक्टली। अभी हबीब इज द फेस ऑफ एमएमए की ये आइडल बना, और तोड़ रहे हैं ना भाई। हबीब के पास तोड़ सारे रहे हैं, हाँ। सारे एक तो अनडिफिटेड स्ट्रीक चालू है, नेचर इतना अच्छा है, लोगों से बात करने का वे इतना अच्छा है, तो और जो रोगन ने एक बात बोला था कि लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे हबीब के फाइट को कि बहनचोद ये रेसलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, अरे लौड़ू फाइट तो बहनचोद खड़े पे चालू हो रहा है ना। Exactly. तुम लोग ग्राउंड पे तो नहीं चालू हो रहा। और ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। कॉर्नर वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। कॉर्नर का एक कॉर्नर ऐसा है भाई, कड़का फटका बड़ा खत्म। हाँ। भाई उसने क्या खाया यार। मैं एकदम must know it better, obviously. रियलिटी बताता हूँ, एकदम रियलिटी इन एमएमए। ठीक है, खबीब को देखोगे ना, उसके पंचेस स्ट्रेट नहीं जाते कभी। उसके पंचेस ना वो कभी किक्स यूज करता है। उसके मतलब इन एमएमए इट्स एक्चुअली मिक्स ऑफ ऑल फाइटिंग स्टाइल्स, राइट? मिक्स्ड मार्शल या मिक्स मार्शल आर्ट्स, हर एक फाइटिंग स्टाइल का कॉम्बिनेशन विच इज इनसाइड यू। ये मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक नॉर्मल फाइट में भी अगर एक इंसान, अगर सामने वाले इंसान को सिर्फ रेसलिंग भी आता है ना, तो भी वो एक एमएमए का मैच जीत सकता है। Okay. बट अगर एक इंसान को अगर सिर्फ किक बॉक्सिंग ही आता है, नहीं एक एकदम नॉर्मल चीज बताता हूँ, एक सामने वाला इंसान पंच मार रहा है, पंच मारेगा कितना ही मारेगा, सामने वाले ने वेस्ट ग्रैब कर लिया, तेरे को दे दिया एक जर्मन सुप्लेक्स, तेरे इधर यहाँ पे प्रेशर आया स्पाइन पे, गया ब्रो, उठ ही नहीं पाएगा वो। तो तू क्या सो के भी हाथ पैर चलेगा? नो, कुछ नहीं हो सकता। इफ अ पर्सन नोज ग्राउंड गेम, इफ ही नोज रेसलिंग और ग्रैपलिंग, ही कैन भाई कितने better शाइन इन examples एमएमए। है भाई। भाई खबीब भी सबसे बड़ा एग्जांपल है। कमारू उस्मान, हाँ, कमारू उस्मान भी कितना लेट सीखा है। पर वो प्रॉपर उसको स्ट्राइकिंग आता है। है। खबीब को स्ट्राइकिंग नहीं आता। Totally grappler, right? उसके पंचेस ऐसे जाते हैं टेढ़े, लाइक हम लोग को सिखाया ही जाता है कि जब तक प्रॉपर जैब नहीं जाते तुम्हारे, तब तक तुम बैक्स पे मत पंच करो, शैडो बॉक्सिंग करते रहो। उसको आता ही नहीं ब्रो बॉक्सिंग। उसको स्ट्राइकिंग में कोई भी अगर एक प्रॉपर बॉक्सिंग मैच हुआ कॉर्नर और खबीब में, तो जीत जाएगा कॉर्नर, बट एमएमए नहीं जीत सकता ब्रो। वो MMA is ultimately a fair deal to हाँ, fair deal to everyone. everyone. But don't you think, exactly. I mean, if it comes to fair deal, coming to this combat sport में, don't you think कि उससे फिर deadly हो गया मुआ थाई और उससे deadly लेथवे? No bro. क्योंकि वहाँ पे तो और तेरे को मतलब पता है- there are no rules there. लेथवे में तो क्या rules है ना? लात बात मारने का पहले भी था, तो but- यूएफसी में भी लात बात तो कि तुम नीचे Like there नीचे is रहोगे no, तो लात नहीं like मार सकते। even in नहीं मार MMA सकते। it is Bro, restricted to a human certain. body is made to like, वो बिल्ड ही ऐसा हुआ है कि वो लेवल का पेन झेल सकता है। अगर तुम्हारी बॉडी का प्रॉपर कंडीशनिंग है ना, तो मुआ थाई में कैसे 60 किक्स छोड़ता है, ह्यूमन बॉडी अगर उसका कंडीशनिंग प्रॉपर है तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल तक पंचेस
और किक्स झेल सकता है अपने बॉडी पे, बट व्हेन इट कम्स टू ग्रैपलिंग ना, डेंजर है भाई ग्रैपलिंग। Grappling इट इज वेरी कुछ है नहीं ना, फ्लैशी नहीं है ना बिल्कुल। नहीं, वो बहुत लाइक डेलिकेट पार्ट्स पे टारगेट होता है। Right, जैसे कि अपना नेक हो गया, फूड पाइप दबा दिया, सांस ही नहीं ले पाएगा आदमी, मर जाएगा ना ब्रो। मतलब एक इंसान की लाइफ ग्रैपलिंग में, वो सामने वाले ओपोनेंट के पास उसके हाथ में रहती है उसकी लाइफ। अगर वो टैप कर रहा है, तुमने छोड़ा ही नहीं, What if you're not letting him come अरे very नहीं ना close to you? भाई, तो वही you have वही to problem है ना। know it is not like that। वही तो वो होते को सामने अपने वाले लगता नहीं वो होगा। सामने वाले इतना टेक्निकल होगा ना पकड़ कि तुमको लेगा। समझेगा ही नहीं ब्रो कि मैं ना अभी मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, उसको समझेगा ही नहीं मैं उसको पकड़ूंगा कब। मैं उसके सामने नीचे से झुक जाऊंगा और मैं उसका पैर ग्रैब करके उसके दोनों पैर के बीच में से निकल के मेरे एक लेग से उसका पूरा बॉडी वेट नीचे डाल दूंगा। वो गिर गया, वो गिर के मैं उसके ऊपर आ गया, खत्म। सबमिशन अटेम्प्ट खत्म, जगह पे within seconds bro। There are There was a amazing- match I watched. I mean, ये मोथा का, who is the Muay Thai star? आयरन एक तो चिन वो- उसका नाम। एक तो जो वन चैंपियन है बहुत फेमस है। हाँ His name is like, वो देख ना बैंड में हाँ वही वही रॉन्ग टंग ऐसा करता है। हाँ, wrong time। Tong उसका Boka उसका something. नाम है आयरन चिन, मतलब ऐसा Right, इसमें right, है। right. मतलब He's वो another उसका guy. चिन भी काफी स्ट्रांग है और मतलब ऐसा वो काफी पंचेस खा सकता है, बट उसके साथ एक MMA फाइटर की मैच थी. He's a very good grappler. The bald guy. I don't know, the same category है शायद से. He's also the champion, UFC champion है वो भी. किस में यूएफसी में मैच हुआ UFC था? में हुआ था दोनों का मैच. It's a very old fight, बहुत मतलब 2-3 साल पुराना फाइट था और मेरे को भी टाइम हो गया, मुझे ये मैच देखे मेरे को बहुत टाइम हो गया. उसने ग्रैपलिंग के बेसिस पे ही हराया था उसे. हाँ bro, एक bro Exactly dangerous bro, है। मुआ था वाले। And वो- he's like, that Tony guy is like, Ferguson- he's crazy. वो बंदा ना उसको कोई दे रहा ना, किक दे रहा मुंह पे. He's like, मार. टोनी फर्गसन ना He's भाई, like that, हाँ? टोनी फर्गसन करके उसका मोथा, आई गेस टोनी मोथा ही ट्रेन किया है। उसका किक्स है ना भाई, वो अपना पोल्स रहते हैं ना, स्टॉप साइन का वगैरह पोल्स रहते हैं, वो एक दिन ऐसा वीडियो बनाया, वो स्टॉप साइन के पोल पे लोखंड का पोल है, ठाप ठाप शिन से मार रहा है भाई। और ऐसा भी नहीं, नॉर्मल प्यार से सन मतलब, और एक्टिंग करता था, बजाता है पहले उसको और किक मार। मतलब मोथा है ऑब्वियसली हार्डकोर कंडीशनिंग है वो लोग का, Exactly, हाँ, बहुत लेकिन टोनी conditioning। फर्गसन हारता है। इस तो ग्रैपलिंग तो मेरा डेंजरस है। मेरे दोस्त का ना, मेरा एक जो हम लोग साथ में बहुत एमएमए डिस्कस करते हुए बेंच, वो गांडू को लेकिन स्ट्राइकिंग ही पसंद है। ही इज अ हार्डकोर कॉर्नर फैन, आई एम आल्सो कॉर्नर फैन, बट अभी कॉर्नर का ऐसा लगता है कि जान दे बेंच, बकचोदी बन गया, ये WWE हो गया इसका अभी लाइफ। तो वो ना हमेशा बोलता नहीं भाई स्ट्राइकिंग, मैं बोला नहीं यार, मेरे को भी ना रेसलिंग बचपन से ऐसा लगता ना कि भाई बिकॉज ऑफ WWE एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ द मूव्स यू सी इन दैट रिंग, कि अरे ऐसा मूव्स कर रहे हैं, इधर से उठा के फेंक रहे हैं, तो वो हमेशा से ऐसा लगता था ना कि भाई ये सीखना है। मारा मारी तो आदमी के अंदर जिगरा है ना हाथ फेंकने का, वो फेंकेगा, आड़ा टेढ़ा फेंके, कैसे ही फेंके, उसके अंदर वो जिगरा है फेंकने का। बट टेक्निकली तेरी गांड मारना, तेरे को खड़े खड़े गिरा के तेरा पैर तेरी गांड मारना इज अ होल डिफरेंट थिंग, राइट? I mean, ये ऐसा लगा यार, ये बेचारे ने मारा वारा कुछ नहीं, इसको ऐसे हरा दिया, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा देख के. अच्छा टेल That is मी what grappling is, right? चलो लेमैन के लिए एक्सप्लेन कर, हाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग? wrestling, like it's very simple. In wrestling you have to like you have to pick that human up, Right. and you have to throw him. Okay. Most of the time you have to make his back touch on the ground. Simple. That's it. And in grappling you do submission attempts. Exactly. Whatever you do on the Submission, ground. yeah, you make him tap, Exactly. you make Then him comes lose striking. that. People also, don't right? understand, Some striking or grappling में Striking difference is होता है. standing, strike. Wrestling is based upon points. The more points you score at the end of the Doing the moves. decision, हाँ, yeah, हाँ. doing the moves, end of the decision, whoever points is more, he'll win. But in grappling, that person only win जो सबमिशन अटेम्प्ट who submission like जिसका submission बैठ जाएगा, सामने वाले ने टैप कर दिया. खत्म. अगर नहीं हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम तक, अगर कर रहे मतलब करते ही जा रहे हैं, बट नहीं हो रहा है, कोई टैप ही नहीं कर रहा है, कंट्रोल टाइम, तो फिर इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसने सबसे ज्यादा सबमिशन अटेम्प्ट्स किए. किए. गॉट इट. और ग्रैपलिंग में रेसलिंग भी यूज होता ही है, क्योंकि एक अगर एक इंसान को उठा के फेंक दो, जैसे ही वो नीचे आता है ना, उसका कॉन्फिडेंस भी नीचे आ जाता है. मेरे एक फाइट, वो जो दिल्ली वाले जो मेरा फाइट था, वहां पे मैंने ऐसा ही किया था. मेरे ओपोनेंट को स्टार्ट में वो आया ऐसा नी मारने के लिए आ रहा था वो, तो
वेंचर उसका पैर मिल गया मेरे को, हाँ। मैंने उठा के फेंक दिया उसको, मैंने देखा लेजेंड उसका फेस उतर गया, कॉन्फिडेंस से गिर गया। भाई नॉकडाउन ही बोलते हैं, नॉकडाउन होना इज अ Knockout. नॉकआउट इज तो Knockout खत्म is करना, different. Knockdown- नॉकडाउन इज यू गेटिंग ऑन द ग्राउंड। गेटिंग तो डाउन, वो एक्चुअली व्हाट एवर सेइंग कि बेंच कॉन्फिडेंस गिरता हो, गिरता ही होगा यार। गिरता ही है। एंड फॉर एग्जांपल इफ समवन इज अ स्ट्राइकर, उसका वो गिरना इज अ होल डिफरेंट थिंग। Yeah. ग्रैपलर रेसलर का तो आदत होती है गिरने की, अच्छा ठीक है मैं बैक पे भी जाके मैं गार्ड पुल करके कर लूंगा गेम। Yeah. बट अ स्ट्राइकर हु इज लाइक भैंचो एकदम 100% किल है वो स्ट्राइकिंग में, अगर वो गिरता है जैसे कॉर्नर जब वो थर्ड राउंड पे गिरा उसको हबीब ने गिराया भाई, हबीब एक नॉकडाउन नहीं हुआ, हबीब ने उसको नॉकडाउन, पब्लिक की भिंगरी चेक हो गई कि ये कैसे गिर सकता है। और इजी उड़ा था ना। फिर उसके बाद उसने मस्ती करके, देखो पता है एक हबीब के एक इंटरव्यू में एक इक्वांटा व्हाटएवर द नेम इज करके, ही इज अ वेरी गुड बॉक्सर, ही इज अ वेरी गुड, आई गेस ही इज आल्सो अ ब्लैक बेल्ट। हबीब क्या बोलता है, 5 राउंड खेला कभी उसके साथ, कभी उसको बोलता है आई वाज प्रैक्टिसिंग, बोलता है ही इज अ बेस्ट बॉक्सर। तो सब लोग कभी को क्रिटिसाइज करते, तू कैसा बेंचो, तू 5 राउंड कैसे टिक गया उसके साथ, एलोक्वेंटा मतलब इतना अच्छा है, बोलता है आई वाज प्रैक्टिसिंग बॉक्सिंग, बोलता है बेंचो। व्हाट कॉन्फिडेंस इज दैट, या डेफिनेटली व्हेन व्हाट यू कॉन्फिडेंस इज दैट। ये तो है ही, ये तो ऑब्वियसली है। मैंने ना उसका भी देखा था, दिस इज अ लेथवे फाइटर, उसका नाम है कुछ तो डेव समथिंग, नो या ही इज आल्सो अ बॉल्ड गाय। या उसने इसको चैलेंज किया था मौथा के वो लेजेंड अच्छा, को, okay. ठीक है। तो उसके चैलेंज करने के टाइम पे उसने वो वीडियो बता दी थी, उसने बोला था करके आई डोंट थिंक ही कैन इवन टच मी, और बोलता मैं बिना मतलब बोलते ना बिना किसी बोलते ना मेरे व्हाट डू यू कॉल इट, लाइक एमएमए के अगर रूल्स के हिसाब से भी चलूँ ना, बोलता मैं मेरे किक्स मेरे स्ट्राइक्स इतने अच्छे हैं ना कि मैं उसके बिना मैं बिना लेथवे के स्किल्स के भी मैं ना उसमें उसको उड़ा दूंगा इसी। राइट देन द फाइट हैपेंड, हाँ इन लोग की फाइट हुई 2 से 3 राउंड्स, इसके शरीर पे ना सिर्फ एक जगह से, कहीं से सर पे से कॉर्नर से कहीं से खून आ रहा था। हाँ उसने उसको तीसरे राउंड में ना वो माउथ फाइटर को खत्म कर दिया, एंड जस्ट एक चीज पे एल्बो से। हाँ ब्रो बहुत डेंजरस रहता एक है। वो फाइनल किक था, एक नॉकआउट उसका पहले, एक नॉकआउट उसका पहले हो गया था, हाँ। ठीक है। फर्स्ट नॉकआउट उसका फर्स्ट राउंड में हुआ, हाँ नॉकडाउन हाँ फर्स्ट नॉकडाउन उसका फर्स्ट राउंड में हुआ, सेकंड नॉकडाउन उसका थर्ड राउंड में हुआ, थर्ड राउंड में वो उठा ही नहीं 10 तक, और 10 के बाद उठा बाद में वो, एंड इट वाज लाइक 10 सेकंड्स लाइक 10 काउंट्स इज लाइक 20 सेकंड्स, राइट? हाँ मतलब आराम से करते हैं। और वो लेथवे के रूल्स भी कुछ अजीब है, लाइक इट्स लाइक तुमको नॉकआउट करके ही हराना है, देयर इज नो अदर थिंग। अच्छा द ट्रेडिशनल वो म्यांमार वाला लेथवे वाला स्टाइल इज लाइक डिफरेंट, तुम दोनों जब तक खड़े तब तक मैच ड्रॉ है। हाँ वो जो पुरानी But then मूवीज they- में होता था ना कि उन्होंने अमेंडमेंट्स लाए उसमें, चेंजेस लाए उसमें रूल्स में, और लाइक इट्स नोवेयर कोई रूल्स ही नहीं, मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं। तुम हाँ ब्रूटल फाइटिंग है वो एकदम एक तरीके से, लाइक आई हैव सीन कट्स, लिटरल कट्स देखा वो है। नहीं, वो पुराने जमाने में होता था कि जब तक सामने वाला मरता मतलब नहीं भाई ये क्या है, मारते मतलब तू छाती पे ऐसे लात मार, अरे भाई छाती छोड़, शिन मार रहे मुंह पे। have you seen like before like MMA introduced हुआ वर्ल्ड को, मोहम्मद अली या का एक मैच हुआ था एक रेसलर के साथ, हैव यू सीन दैट फाइट? हाँ हाँ उस फाइट से MMA आया, यू नो। ओके किसके साथ थी? मोहम्मद अली इज अ बॉक्सर, Right. उसका फाइट था एक रेसलर के साथ। A wrestler doesn't know how to box and a boxer doesn't know how to wrestle. राइट तो लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे वो मैच देखने के लिए। आई टेल यू क्या हुआ, इफ यू हैव सीन, मोहम्मद अली वो जब तक खड़ा था वो पंचेस मार रहा था, रेसलर ने क्या दिमाग लगाया, वो बैठ गया नीचे, और वो अपने हाथ से पीछे पीछे जा रहा है, जैसे मोहम्मद अली आगे आ रहा है, वो नीचे झुक के नहीं बॉक्स कर सकता क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं है। I guess Yeah, you know what he did? He started like kicking his legs from like उसके पैर पे वो मारने लग गया, और मोहम्मद अली पीछे जा रहा है, वो आगे आ रहा है, उसके लेग्स पे किक कर रहा है, वापस पीछे जा रहा है, बैठे मोहम्मद अली कुछ नहीं कर सकता है। वो फाइट के बाद मोहम्मद अली हैंडीकैप हो गया था ब्रो, उसके बाद ही जो उसका जो सब हुआ न्यूरो वाला शॉट, उसी के बाद स्टार्ट he lost the fight? ऑब्वियसली। और also let's coming to this injury वाला शॉट, आई रिसेंटली मैंने पढ़ा कि बॉक्स जो जितने बॉक्सर्स है उसमें ज्यादा इंजरी हो रहा है कंपेयर टू एमएमए। लोगों का परसेप्शन ऐसा नहीं कि एमएमए वायलेंट है, ऑब्वियसली वायलेंट है, because पार्ट ऑफ द बॉडी। boxing your main target is your face, your head. दिस इज द रीजन आई लव मेवेदर। लोग मेवेदर को गाली देते हैं, चलो देते होंगे जो भी है, बट उससे डिफेंसिव फाइटर कोई नहीं है यार, इतना सुंदर फाइटर है ना यार वो। Sexy. और बहुत काम भाई, कनेलो का भी डिफेंस बहुत काम। काफी अच्छा बट आई लव द फैक्ट कि यू आर agreeing to it because not all MMA fighters are like बहनचोद fuck Mayweather वाले रेंज में रहते हैं। No bro, no. Mayweather is a very good boxer.
See, the whole generation has been fighting, right? Yeah. तो फिर वो तो अंदर से जमा हुआ है हर बहुत सारे फील्ड्स है, फाइटिंग में भी काफी सारे फील्ड्स है, और अगर तुम उसमें काफी अच्छा कर रहे हो ना तो तुमको नहीं फर्क पड़ना चाहिए hate से। Exactly. तुम अपने में कर रहे हो ना, Exactly. तुम हैप्पी रहो, तुम और यूथ को इन्फ्लुएंस करते रहो इस चीज पे, एंड यू कीप गोइंग ऑन। आई जस्ट वांट टू से दैट कीप गोइंग ऑन। मेवेदर कितना ज्यादा बड़े लेवल पे, क्या लेवल बहुत पे ना है। he's also retired right now. He's retired now, वो retired मस्ती करता है now. बस, फालतू फाइट करता है इधर बीच उधर। बीच में। हाँ, फालतू फाइट पैसा करता है, कमाता है और उसको छोड़ देता है। फर्क ही नहीं पड़ रहा ब्रो। नहीं फर्क पड़ रहा। उसने कितना कमा भाई लिया। पाकियो को लोग बोलते हैं पाकियो का फाइट बेकार, अरे तुम भैंचो देखो तो अरे पाकियो चूतिया यार। बन रहा था। पाकियो वाज लूजिंग हिज शिट जब मेवेदर उसको टच ही नहीं करने दे रहा है। I'll tell you, फक, boxers are legit very good boxers. काफी टेक्निकल काफी टेक्निकल। प्लस स्पीड पावर तीनों साथ में, right. बट फाइटर्स आर नॉट गुड बॉक्सर्स। I'll tell you, काफी फाइटर्स, मोस्ट ऑफ द फाइटर्स won't agree. आई नो दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट। You know why? Because fighters को like they just cannot concentrate on a single like fighting style. single They cannot. That's why they are not like building up in that specific fighting style. एकदम top पे. They have to look overall. And boxers में you just have to punch and defend One your thing, head एक movement. चीज better होनी चाहिए। Yeah, that's why boxers are actually very good वही है ना, boxers. ब्रूस ली का एक इसीलिए dialogue है। कोई MMA फाइटर बॉक्सर्स के सामने नहीं टिकता है। नहीं टिकेगा, ये सवाल ट्रू ही है। क्यों यूएफसी के पूरा ऐसा वो ये हो गया है पूरा अंदर से कि चिड़चिड़ मेरे हो गए। इतने सारे फाइटर्स हार रहे हैं, बट ये फैक्ट है भाई, क्योंकि नहीं आता फाइटर्स को बॉक्सिंग। But now these people are coming from jujutsu background से वो लोग MMA में आ रहे हैं, मौथाई से MMA में आ रहे सब जगह हैं, से आ रहे टेथवे से MMA में आ रहे हैं, Yeah. सब जगह से MMA में आ रहे हैं। आई वांट कि boxers should go in MMA and then राइट fight. राइट, आई थिंक पीपल आर डूइंग दैट, पीपल विल गो इन अभी देयर। अभी क्या उसका नाम, अभी जस्ट कोई तो किया है ब्रो। अभी इसका फाइट था टाइसन फ्यूरी के साथ, फ्रांसिस एनगारू। हाँ 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 माय फेवरेट हेवीवेट फाइटर, ही इज प्योर पावर हाउस। हाँ भाई, उसने टेक्निकल नहीं है वो। डिड यू टेक्निकल सिरिल गेन के साथ का देखा? सिरिल गेन को कैसा उठा के फेंका ब्रो, कैसा उठा के फेंका, उसको नहीं आता है रेसलिंग। Wrestling नहीं आता है bro। स्ट्राइकर है वो, बट आड़ी तड़े पंच हाँ वो रोजन स्ट्राइक के साथ सामने तो ऐसे ऐसे कैसे भी पंच घुमा रहा था, बट एक पंच लगा खत्म। और खत्म, और वो अनडिफिटेड था ब्रो। हार गया वो बोला कि मैं इतना बेकार हारा, वो भी इसके आड़े टेढ़े पंच से। फिर वो फाइट में उसका जो पंच लगा था ना, उसका वर्ल्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंच का रिकॉर्ड दिया गया था फ्रांसिस को। एक फोर्ड एस्कॉट उसके फास्टेस्ट स्पीड में भी हिट करेगी तो भी उसके 2 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका पंच। ब्रो उसने सिरिल गेन करके ना, सिरिल गेन भी सेम 6'3" 6'4" रहेंगे ये लोग, सिरिल गेन बिल्ड लाइक अ ब्लॉक। किसी को मालूम नहीं था कि एनगानू कुड रेसल, उसने उठा के फेंका उसको, क्योंकि सिरिल गेन इज अ रेसलर भी, हाँ उसका रेसलिंग बैकग्राउंड भी है, तो सिरिल गेन उस पे चढ़ रहा है, ये भाई उसको उठा के फेंक दिया। एनगानू वाज फेमस बिकॉज ऑफ द पंचिंग पावर, यस डेंजर। एंड फ्यूरी के साइड का फाइट यार, एक एमएमए वाला गाय। यस ब्रो, उसने कितना लाइक एमएमए फाइटर्स का रिस्पेक्ट बचाया फ्रांसिस एनगानू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हर एक फाइटर्स अब तक हारे। और ये भी हारा, ये जीता नहीं, ये हारा, लेकिन इसने येड़ भगा दी फ्यूरी की। वो फालतू लोग जैसे जेक पॉल हो गए, हाँ, ये लोग बॉक्सिंग में आ रहे But हैं। I think Jake Paul is a good fighter boxer. now, Yes, yeah. he is becoming a good boxer. Initially he was not good. Logan Paul went to WWE. हाँ, वो तो Now that- सपना था भाई वो लोग का, वो लोग सपना कर था, लिया, yeah. वो लोग They जो कर रहे went- they entertainment did shit। that. But starting में initially I thought Jake Paul है, छूते यूट्यूबर है, नहीं क्या ही भाई, करेगा ये। fuck। But then when I saw his matches, he is becoming a good boxer. देखो पता है, I was arguing about this कि मेरा फ्रेंड से और बोलता है नहीं रे चूतिए ये यूट्यूबर, फिर मैं बोला नहीं लौड़े, मैं बोल रहा हूँ उसमें वो है, वो कर रहा है। उस पे फिर जब है। जो रोगन ने बोला ना, तो जब चोको लेने लग गया, हाँ भाई जो ने बोला ना तो सही बोल रहा है, जो ने बोला तो सही बोल रहे होगा। See, coming back to the topic again. Now, this podcast is going to happen in the first week of January. The reason it didn't happen because शेरा अभी आयरलैंड गया था। हाँ, तो are there any stories about Ireland? जो I mean, please. the reason you went to Ireland is because पर्सनल रीजंस। No, the reason I went Ireland because I wanted to like see universities. I wanted to plan my future over there. Even I'm in a relationship right now. I went to spend time. Spend some time, quality yeah, time. Yeah, quality time with my girl. Like we had a good time over there. Then I also like had a good MMA network over there. I met a lot of people. I had an international exposure. Nice. Like it was quite good. okay. It was quite good.
I loved it. नाइस. तो डोंट यू हैव एनी एक्सपीरियंसेस लाइक दिस, जैसे अभी इधर हुआ था कुछ इधर मारा-मारी ऐसा कुछ, उधर कोई मारा-मारी नहीं हुआ है? Yeah. हुआ ऐसा कुछ? Yeah, I'll tell you. let's Like go. not maramari basically, because ऐसे क्या हुआ rules for immigrants and Europeans are different over there. Yeah, there are rules are very strict in Ireland. When I landed, the first thing I was informed that stay away from kids. Stay away from kids. काय को? Because of the pedo shit? Because if those kids are irritating you, if they are showing you knife, if they're giving you a cut also, Kids are showing you knife yeah, and you have to just stay away from them still. you cannot in return you cannot even touch them. You cannot If you do, retaliate. you are in Okay. jail. Oh my god. Retaliation अब घर पे रखे हो? हाँ मतलब थोड़ा अरे उनको मालूम है ना उनके बच्चे हरामी है, तुम उनसे दूरी रहो, वो अच्छा रहेगा. चलो ठीक है, it's fine You'll that end way. up in stupid shit. समझ गया. Then this was the first thing I was informed. Then वहाँ पे जब मैं गया था उसके 1 month पहले राइट्स हुए थे. ओ अरे हाँ राइट डबलिन में riots होते हैं, exactly. तो फिर वहाँ पे राइट्स में जो लोग इन्वॉल्व थे ना, लाइक बेसिकली वहाँ के जंकीज, आई टोल्ड यू. मेरा एक फ्रेंड है, लाइक ही जस्ट गॉट एंगेज राइट नाउ. तो मैं गया उसके घर पे, लाइक एंड पीपल आर फेसिंग हाउसिंग क्राइसिस ओवर देयर. लाइक जो पीपल बेसिकली जो नॉर्थ डबलिन में रहते हैं, दे आर लाइक अच्छे कंडीशन में नहीं है वो लोग, बिल्कुल नहीं है. वहाँ पे काफ़ी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है. मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वहाँ से पूरे लोग आ रहे हैं, उनके हाथ पे ब्लड लगा हुआ है. दे आर डूइंग लाइक कुछ भी कर रहे हैं. ऑलमोस्ट सारे ड्रग एडिक्ट्स, सारे ड्रग एडिक्ट्स ऐसे डस्टबिन में ड्रग्स फेंक रहे हैं, और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड साइड से जा रहे हैं. बट आई नो नथिंग विल हैपन. हम लोग घर जा रहे साइड से, देन हम लोग गए घर पे, फिर हम लोग ने काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की. बट initially I thought that Ireland is a very safe country, but when I went, Ireland is safe, no doubt, but the main city center Dublin and not Dublin are extremely unsafe. Certain parts Yeah, तो certain dangerous parts है. हाँ, जैसे अपने The इधर हो main गया city गोवंडी is मानकुर हो unsafe. गया bro. अपने इधर का गोवंडी मानकुर, The point exactly. is Govandi Mankhurd is not the prime center here, right? Yeah, वो तो है ही मतलब इधर का एकदम. हाँ, वहाँ पे सेंटर ही, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक मतलब ऐसे ड्रग डीलिंग हो रहा है. मैं वहाँ पे सबवे खा रहा हूँ ब्रो. Sure dude, fuck. मैं वहाँ पे सबवे खा रहा हूँ, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड देख रहे कि क्या हो रहा है. उधर एक लड़का कॉर्नर के साइड में, दिस इज फकिंग डब्लिन, यू डोंट नो व्हाट वी गोना डू टू यू. और वो सामने वाला बंदा ऐसे ही खड़ा है, उसके यहाँ पे कोकेन का एक पूड़ी ऐसा लटक रहा है पूरा. लेजिट पता नहीं मेरे को कैसे लटक रहा था, बट मैं देख रहा हूँ, मैंने बोला इतने ओपन में लोग जॉइंट फूक रहे हैं. वहाँ पे कॉप्स को गाड़ा बोलते हैं. अच्छा. तो वहाँ पे गाड़ा भी ऐसे अपने में ही लगे हुए हैं. मतलब उधर इतना आदत हो गई है. आदत हो गया है. और वहाँ पे फिर उधर वो लफड़े मतलब काफी लफड़े तो बहुत देखे हम लोग. एक वाव बर्गर करके एक जगह है, वहाँ पे गए थे खाने, उधर मारा मारी स्टार्ट. मतलब अग्रेसिव है यार काफी, बहुत कंट्रीज नेक्स्ट लेवल अग्रेसिव. इंग्लैंड का कल्चर ना, वो जब मूवीज ऑफ फुटबॉल वाला कल्चर भी है, अग्रेसिव है, बेंच और टीम सपोर्टिंग वाला कल्चर है. लोग क्लब में मारामारी कर रहे हैं, फिर साथ में बैठ के दारू पियेंगे. हाँ, कि मारामारी इज द अल्टीमेट. तुम मारामारी करो. वो पूरा यूरोप और आयरलैंड तो और बेंच और डेंजरस है, थैंक्स टू कॉर्नर. और ये हो चुका है कि तुम मारामारी करो ही. कौन सा मूवी था यार, डिक्टेटर मूवी देखा तूने? जो एक्टर है साशा बोरन कोहन, व्हाटएवर नेम इज, उसका एक लंदन वाला कोई तो मूवी है, उसमें वही दिखाया. बेंच जो मारामारी कर रहे हो, क्लब कल्चर ऐसा है, और बियर पी रहे. बेंच सुबह उठ रहे बियर पी रहे, दोपहर को बियर पी रहे, शाम को बियर पी रहे. कल्चर ही उनका वैसा है. वायलेंस इज जस्ट अनदर थिंग. बट ये जो तू है ना, दिस इज वेरी डर्टी कि अभी बेंच ड्रग एडिक्ट, ये वो लफड़ा और काफी ज्यादा है. फिर मेरे साथ एक सीन हुआ था वहाँ पे, लाइक बिफोर कमिंग टू बैक टू इंडिया, 2 days बिफोर, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम लोग फ्रेंड के घर से रिटर्न आ रहे थे. जो स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप, वहाँ पे रात को 12 बजे, या एग्जैक्टली रात को 12 बजे. जरूरी सुनना है रात को जरूरी. दिन में कि रात में भाई पता चले कितना क्राइम है. हाँ, रात को हम लोग खड़े, वहाँ पे एक बंदा है, ही इज ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग. तो उसने आके इनिशियली पहले आया, उसने हमको बस नंबर पूछा, मैंने उसको बस नंबर बताया, तो वो थैंक यू बोल के गया. वो रिटर्न आया, उसने मेरे को स्मोक ऑफर किया, मैंने बोला नो ब्रो, इट्स ओके. तो फिर बस आती है हम लोग की, हम जाते ऊपर बैठने. डबल डेकर बसेस होती है वहाँ. तो ऊपर गए बैठने, तो वो हमारे साथ ऊपर आ जाता है. देन 5 मिनट बाद वो हमारे पास आता है, एंड लाइक वो ऐसे अपनी डायरी खोल रहा है. ही इज शोइंग
लाइक हिज डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और ऐसा उसका जॉ यहाँ का टूटा हुआ था, जंकी सिंपल जॉ टूटा, हाँ और काफी, और उन लोग की ना बहुत अलग ही बॉडी स्मेल होती है, लाइक यू कैन नॉट सिट। और हम लोग ने काफी शॉपिंग किया था, और वहाँ पे वो हम जहाँ पे हमने बैग्स रखे थे बाजू वाले सेक्शन में, वहाँ पे आके वो बैठ गया और हमारा ये सामान चेकआउट कर रहा है सब। तो फिर वो बैक करने लग गया कि मेरे को पैसे दो, तो मैंने उसको सीधा बोला कि लाइक यू आर डूइंग यू आर डूइंग एवरी काइंड ऑफ शिट राइट नाउ, एंड यू आर आस्किंग मी फॉर मनी, एंड देन यू आर टेलिंग मी दैट यू डोंट हैव मनी टू फॉर योर मेडिकल कंडीशन। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया, देन उसने मेरे को दिखाया नाइफ। तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी डर गई, तो उसने मेरा ऐसा थाई ग्रैब किया, मैंने बोला चिल चिल बे, वो इट्स ओके। तो मैंने उसको बोला प्लीज डोंट डू दिस, वी आर अ टूरिस्ट, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ ट्रबल। तो वो बोल रहा है गिव मी मनी, ऐसा नाइफ दिखाओ। इतने नशे में भाई, नेक्स्ट लेवल नशे में। मैंने बोला क्या बात है भाई, अपने इधर के गर्दुल लोग नहीं करते, इतना कर रहा है तो। तो मैंने सिंपली मैं अपनी जगह से उठा, मैंने उसका एक हाथ ग्रैब किया और मैंने उसको इधर ऐसा ये किया और मैंने उसको पीछे सुला दिया, दैट्स इट। मैंने उसको कुछ नहीं किया। मैं क्यों फालतू में, मेरे को 2 दिन में जाना है इंडिया घर वापस। तो फिर वो ऐसे ही था 2 मिनट तक। मैंने उसको लिया, मैं उसको एकदम सबसे लास्ट सीट पे लेके गया ऐसे ही, और उसका हाथ ऐसा ही है, ऐसे ही चाकू है। बोलता ब्रो गिव मी मनी। तो उसको पीछे जाके मैंने ऐसा सुलाया, मैंने बोला कुछ ये तो नहीं, और मेरी गर्लफ्रेंड सामान लेके नीचे चली गई। फिर मैं आता हूँ नीचे तो पूछते कि सब ठीक है, तूने मारा वारा क्या उसको? तो और मेरी गर्लफ्रेंड ने देखा नहीं कभी मुझे ऐसा फाइट में, मेरे कोई मैचेस नहीं देखे, मेरे को कभी लड़ते नहीं देखा है। तो उसको मेरा वो साइड कभी, हाँ नई गर्लफ्रेंड है, हाँ मतलब हाँ 1 साल हो गया हम लोग को। तो उसने ऐसा कभी देखा नहीं, उसको मेरा वो साइड ही नहीं पता कि मैं कैसा हूँ उस वे में, और मैं चाहता भी नहीं कि कभी उसको दिखे। मैं जितना शांत हूँ उसके सामने वही ठीक है। देन हम लोग नीचे गए तो, और वहाँ पे बस ड्राइवर था, हम लोग ऊपर कैमरा तो बोलते हैं, वो पूछ रहा था कि व्हाट हैपेंड, आर यू ओके ब्रो? मतलब यस ब्रो आई एम फाइन। मेरे को क्या ही होगा, बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। और अपने यहाँ पे होता है ना कि लाइक 20-21 साल के लड़के उतने मैच्योर नहीं होते, अपने आप को संभालते कैसे वो नहीं होता। बट मुझे लाइक काफी उस चीज because you've been doing what you're doing, you're ultimate to fighting, you're learning how to fight, and वो वही बोलते हैं ना यार, तुम ढंग से सीखोगे ना, तुम ऐसा स्पोर्ट लोगे ना उसको, तुम बहनचोद काम हो जाओगे जीवन में, और जीवन का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। नहीं तो बहनचोद अपन एज मेन आर वायर्ड लाइक दैट, कि अभी वो ये हो गया है दिस टर्म वायर्ड, men are wired like that, कि मारा मारी करने के लिए ही बने, hard wired, men are hard wired like that। तो वही रे, बहुत जरूरी है कि तुम बहनचोद violence is not always necessary, never the answer यार। violence will kill you itself। लौड़े लगा तुमको ना, चलो हेल्थ को कुछ ना हो, तुम्हारी जिंदगी के लौड़े लगने के पूरे लौड़े लगते हैं। एग्जैक्टली, हाँ तुम गलती से किसी को मार दो, पता चला पटेल बाप का बेटा है, चलो भाई डाल दो इसको अंदर। नहीं, अगर एक केस भी लग गया तो फ्यूचर खराब ब्रो। मैं तो इसी डर से लाइक स्टार्टिंग में जब मेरे को मालूम पड़ा था कि ऐसा ऐसा कुछ सीन होता है, तो मैंने बोला कि सीख रहा हूँ मैं, आई विल डू इट इन अ वेरी गुड वे, आई विल डू इट इन अ लीगल वे। राइट नाउ अभी यू आर रनिंग अ बिजनेस, क्या हाउ डू यू सी द कल्चर हियर, लाइक नवी मुंबई और मुंबई का कल्चर? मुंबई में तो गांड फाड़ फीस है फॉर MMA और वट एवर द बुलशिट इज। माई फीस इज नेक्स्ट टू नथिंग ब्रो, वी आर कमिंग। हम लोग ये बहनचोद हम लोग वही बात कर रहे थे, अभी हम लोग जाते हैं वहाँ पे, बिकॉज मेरे को तो सीखना है ब्रो। अभी हम लोग का हॉल का रेंट बढ़ा है ना, तो इसलिए लाइक वी थॉट टू इंक्रीज 500 रुपीज, नहीं तो मेरा फीस 1000 रुपए ब्रो। यहाँ पे इन नई मुंबई या फिर मुंबई में, इफ यूल सी पीपल विल मिनिमम चार्ज यू 5K फॉर MMA ट्रेनिंग। आई नो मिनिमम, minimum you will never get MMA training in 1000 rupees, like talking and to you, we will provide every like every training, boxing including wrestling, grappling, sweet. Everything, and just like basically we are growing up a team. I always wanted to learn wrestling यार, but यहाँ पे अभी इधर कुछ था ही है ही नहीं, कुछ नहीं था। Come join Catskill MMA. Obviously shout out to Catskill MMA, shout out to Catskill MMA, shout out to Sanket Palav। मेरा कजिन इज बॉक्सिंग ट्रेन कर रहा है वो नेपाल में, तो वो अभी इज लाइक 17-18 नाउ, तो वो प्रोफेशनली करना है उसको। तो कुर्ला में कर रहा था, फिर अभी उन लोग नेपाल शिफ्ट हो गए, तो वो उधर सही कर रहा है, उसका सही सीन है। तो उनका भी वही था ना कि दादर वादर साइड है, और
पेरेंट्स का भी एक अप्रोच ना, जैसे पेरेंट्स का अप्रोच टुवर्ड्स कराटे है या टुवर्ड्स क्रिकेट है या टुवर्ड्स फुटबॉल है, कराटे भी नॉन वायलेंट रखता है करके लिए बच्चे लोग के लिए ना। बॉक्सिंग या एमएमए इज अ वेरी न्यू थिंग इन आवर कंट्री नाउ, ठीक है। रेसलिंग तो चलो नॉर्थ ने ठेका लेके रखा है, उनको ही करना है, और कोई कर ही नहीं रहा। कोई नहीं कर रहा। अपने बहनचोद महाराष्ट्र में इतना कल्चर है कुश्ती का, बट मेन स्ट्रीम में कहाँ है? मेन स्ट्रीम में नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, वो सब नहीं है। तो अब थैंकफुली कि थोड़ा एक वेव आया है। एंड व्हाट डू यू लाइक, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ मैसेज फॉर द पेरेंट्स, और हाउ डू यू सी कि ऑब्वियसली यार किसी पेरेंट को चाहता नहीं कि मेरा 10 साल 12 साल का बच्चा 13 साल का बच्चा की गांड लगे। फुट के मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ। लाइक एक बार मैं अपने मॉम डैड को लेके गया था मेरा फाइट देखने, और मेरा ये पार्ट पूरा खुल गया था। स्टिचेस नहीं लगाए मैंने, तो इसलिए वो दिख के नहीं आता अभी, बट ये पार्ट पूरा खुल गया था। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे अंदर इमेजिन कर रहा हूँ, उसी टाइम पे मेरा ये हाथ टूटा था, डिसलोकेट हो गया था शोल्डर। रेफरी को पता नहीं है, मैं सिर्फ ये हाथ से पंच कर रहा हूँ, ये हाथ मेरा ऐसे ही स्ट्रेट है। और एमेच्योर मैचेस में इतना इंजरी नेक्स्ट लेवल तक नहीं होने देते, बट वो इतना हाइप्ड अप हो गया था ना वो मैच की, फक कैसे लड़ रहे ये लोग, खून खराब अड़ाए रहे, तो रोका नहीं गया हम लोग का मैच। हम लोग खेल रहे। तो लाइक जब लास्ट में लाइक मैं अपने मॉम डैड को देखता हूँ, मेरे मॉम डैड रो रो के पागल हो गए। लाइक अभी पिछले 1 साल से मैंने मैच नहीं खेला है, बहुत खुश है, बहुत खुश है ब्रो। मत कर, पढ़ाई कर, तू तेरे को बैठ के खिलाएगी जिंदगी भर, पर ये सब मत करना। बट अभी मैं कितना भी ट्राई करूँ ना उनका माइंडसेट चेंज करने का, बट दे आर इंडियन पेरेंट्स, वी आर फुल ऑफ कल्चर। एग्जैक्टली, इतना कल्चर भरा है ना हम लोग और में, वो गुंडागर्दी में आ जाता है यार, वो कैटेगरी में आ जाता है। एमएमए मारामारी बस एग्जैक्टली मारामारी एक है, मारामारी करते हैं। नाइस, दैट्स नाउ अ नाइस मारामारी एसोसिएशन। मारामारी एग्जैक्टली। हाँ, अभी वो कितना भी लाइक तू आप कुछ भी कर लो, लाइक कोई भी बॉक्सिंग कर लो या मैच खेलने जाओगे, इंजरीज तो फिक्स होती है भाई। हम लोग को। मेरे को तो है मेरे ट्रेनिंग में ही मुझे हो जाता है इंजरी, थोड़ा सा लगभग गया, घर पे आके गलती से मम्मी ने देख लिया कि ऐसा हुआ है, ना जायचं उद्या बसना क्लासला, ये ना करायचा। तो मतलब वो मैं बस इतना मैसेज देना चाहूँगा इंडियन पेरेंट्स को, लाइक जस्ट टू ट्रस्ट, सिर्फ ट्रस्ट और आपका सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ी चीज़ होगी। अपने बच्चे पे बस थोड़ा ट्रस्ट करो, वो अगर उससे एक टाइम के बाद जाके अगर वो चीज नहीं हो रही, इट्स ओके, वो खुद ही अपना लाइफ डिसीजन लेगा। बहुत ब्यूटीफुल स्पोर्ट है यार, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एक प्रॉपर आर्ट है, मिक्स मार्शल आर्ट। ब्रो ब्रूसली, देख ब्रूसली ने तो इतना एक लाया ना, बट वो ब्रूसली तक खत्म हो गई चीजें, है ना। अब ये क्या हो गया ना, फिर एक इमेज ऐसा आया ना कि इतना वायलेंस वाला इमेज आ गया ना। पहले ब्रूसली को लोगों ने उस नजरिए से देखा नहीं, जो हार्डकोर फैंस थे उनको मालूम था व्हाट ब्रूसली वाज प्रीचिंग, बट पेरेंट्स लोग के लिए क्या था, ये एक्टर है, फाइट करता है, ऐसा करता है, तैसा करता है, बस इसको इधर से फेंक रहा है उधर। फिर जैकी चैन है, जैकी चैन मेड इट, गेव इट अ ह्यूमरस टच। जैकी चैन मस्ती कर रहा है, कॉमेडी डाल रहा है। ब्रूसली के मूवी में इतना ह्यूमर नहीं था जितना जैकी चैन की मूवी में ह्यूमर था। And chalo, let's say you become a parent in future. Yeah. Will you let your kids? Yeah, of course. I want. If I have a sure about it. If I'll get a daughter, then it's all depend upon her. Like simple, whatever. Yeah, obviously I'll myself train her for self defense. Because self defense right now for every girl it is necessary. It is necessary. If like कुछ भी तुम कितने भी सेफ जगह पे चले जाओ, कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लाइक यू नेवर नो। सेल्फ डिफेंस फॉर एवरी फीमेल इज डैम नेसेसरी। गवर्नमेंट ने लॉ बनाना चाहिए, चाकू रखो बैग में, एक मतलब चाकू see that becomes again a violence वाला part, but bro girls are actually exaggerated version, please don't quote me, वेरी स्ट्रॉन्ग। यूल सी पूजा तोमर, अरे डेंजर है भाई, क्रेजी ब्रो, डेंजर है भाई। लड़की में ऐसे मारेगी कोई भी लड़की को ऐसे। और अगर मेरे को फ्यूचर में लड़का होता है तो डेफिनेटली उसको जबरदस्ती तो मैं उसको मारूंगा, बोलेगा तू यही करेगा ब्रो। भाई साहब बहुत ये मैंने जब स्टार्ट करना था, लाइक आई वाज व्हेन आई फर्स्ट हैड अ वर्ड विद शेरा भाई करते करके, तो शेरा इज लाइक कभी करने का पॉडकास्ट। तो इवन आई टोल्ड हिम कि भाई आई एम वेरी एक्साइटेड अपने को करना है करके। ही वाज आल्सो लाइक भाई बस ना अभी करते ना बैठते ना करके। दैट इज व्हाट वी से एवरी टाइम हम लोग जो भी पॉडकास्ट करते हैं। बट देन आई वाज वेरी मच एक्साइटेड कि दिस इज द बॉयज टॉक मैन, द फाइट टॉक्स एंड एवरीथिंग, राइट। एंड उतना ही मजा आया भाई, उतना ही मजा आया जितना सोच के बोलते ना थॉट था ना, वो एक्साइटमेंट वाला, उतना ही ज्यादा मजा आया। राइट देयर इन दैट जोन ना, कर रहा है वो कोई वो लिटरल बॉयज टॉक, इट हैपेंड हियर।
everybody's going to enjoy this part. Yes. I really don't like the part of wrapping up, bhai. Because ना ये I feel this responsibility should be with somebody else to wrap up. Because when it becomes like 2 घंटा, तो वो 2 घंटे के पॉइंट में ना सोचना पड़ता है कि यार 2 घंटे से ऊपर एक्सटेंड करेंगे, हम पार्ट 2 बनाएंगे चाहिए तो. हाँ हाँ हाँ. But then if it goes that way, ठीक है चलेगा. Why like usual podcast 1.5 hour के podcast like people are watching us like 2 घंटा क्यों बनाया? 2 घंटा बनाया नहीं भाई, हमको इतना मजा आ गया ना. मजा आ रहा है बस. It went that way in a very beautiful manner and like everybody इधर सब लोग अभी अपन wrap up. Oh my god, I'm really bad at it. Like I don't know if I'm. नहीं, good there at is it. always a thing I'm for bad part at it, 2. There is yeah. always. Yeah. There is always a कोई thing. There's tension always the next chapter. Yeah, bro. yeah, Yes. yeah, sure. And there is But like बाकी- maybe next time it's going to be Catch Kill MMA वहाँ पे हाँ, बैठ के हम लोग वही, बातें exactly, करेंगे. I was Yes, coming there. exactly. मार खाते बातें करेंगे. Next podcast एक लाइव will be स्ट्रीम में आएंगे Catch Kill फिर और MMA. वैसे पॉडकास्ट करेंगे हम लोग. It should happen that way भाई. It should happen that way. Yeah, for sure. It was a really a very beautiful talk you can say, or intriguing conversation with Shera, Mr. the Shera. fighter. Shera the fighter. It sounds like a South Indian movie. Do you have Shera, do you have anything, a very motivating statement to end this conversation here? Like I'll just say one thing. Like always love your parents. Like convince them anyhow to support you. Like they will. They are your parents. और माँ चोद दो अपनी लाइफ में. Simple. हाँ. कुछ तो उखाड़ो गाइस. Simple. लाइक लेजिट कुछ तो उखाड़ो अपने लाइफ में. और ऐसा लोगों को तुम्हारा नाम याद रहना चाहिए. बस इतना ही बोलूंगा. और बाकी तुमको जो करना है करो. man. it. Shows. Straight अगली facts, बार no बैठेंगे कैच किल A1, में वो फाड़ देंगे बेंच पूरा. वो इतना बड़ा वो 50 किलो का गोनी. A1. नेवर बैक डाउन पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 बनाएंगे हम लोग. अच्छा, good shit. मजा आ गया. See you guys. Outro क्या है? No outro. No outro. See you guys. No outro man. No outro. Yes, no.